Namo Vishnupadaya Krishna Krishna Srimati Bhakti Vedanta Swami Nami Namo Vishnupadaya Krishna Srimate Bhakti Vedanta Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prachari Nirvishesha Shunavadi Paschatadeshatari Namaste Gauravani Prachari Nirvishesha Shunavadi Gora Bhakta Govinda Jai Shri Krishna Jai Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Shiva Shri Gora Bhakta Govinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Govinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Govinda Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Jaya श्री राधा वल्लभ भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गोपिकाणी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। Okay. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Thank So, you. Prabhuji, once again, Hare Krishna, everyone. Once again, we are very, very fortunate to hear from our dear Rahul Prabhu. You know, he gave wonderful class last week, and he's put in a lot of effort in today's class also. You know,
So I really appreciate his service effort. You know, his efforts to please Prabhupada and share with us, you know, whatever he's prepared. I know that there is a lot of anxiety, a lot of stress, a lot of hard work that goes into behind preparing for class. Those of you who have given classes before, you know, you would vouch for it. You know, it's not an easy act, you know. So but I'm sure, you know, Prabhupada and Radha Vallabh will definitely, Radha Krishna, you know, definitely Lordship will be pleased with with all of those people who've been giving classes, you know. So and also, of course, you know, these listeners as well, you know, obviously, um, you know, listeners also play an important role, you know, by you are all doing service by hearing, and similarly, you know, preachers are doing service by sharing with them, sharing with all of us whatever they've heard. So thank you, Rahul Prabhu. I really appreciate, you know, your service. Okay, with that, let us say Hari Bol to Rahul Prabhu 3 times. While we are Hari Bol. Thank you to you, Prabhu, to give us the service. No problem, Prabhuji. Thank you for taking service. That is all. That also requires acceptance and humility. Thank you. Yeah. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Over to you. I'll put myself on mute now. Yeah. I'll just share and. So, Prabhu, can you see the screen? Yes, Prabhu. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna all. Let's do the Mangalacharan. Om Ajnanatiramandasya Jnananjanशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम्. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So let's start with the so today's topic is Radhashtami, because Radhashtami is coming on next Wednesday, and I would actually beg for everyone's mercy because talking about Radharani, it's not I mean, मैंने जितना राधा रानी के बारे में सुना और कृष्ण और राधा जी की इतनी लीलाएं सुनी, उससे हमें पता लगता है कि हम तो भक्ति के नाम पे अभी ABCD के A पे भी नहीं पहुंचे हैं. हमारा भाव और जो भाव राधा रानी का है, जो मर्सी उनके अंदर है, जो करुणा उनके अंदर है, वो बहुत कम है हमारे अंदर. तो हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे. तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं राधा रानी के प्रति अन्याय ना करूं और कुछ, क्योंकि वो बहुत गुही और बहुत ही सीक्रेट पास टाइम्स हैं भगवान के. और राधा रानी का जो कृष्ण और राधा रानी का जो संबंध है वो अक्सर गलत समझा जाता है, स्पेशली जिनकी भावना जो इनकी भावना अभी थोड़ी मतलब ठीक नहीं हुई है, या जो अभी मटेरियली सोचते हैं, जो भगवान को ठीक से नहीं जानते हैं या प्रयास भी नहीं करते हैं. तो ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. तो और इसलिए हमारे आचार्य और हम जैसे कई बार हमारे ब्रह्मचारीज ने, जैसे अर्जुन सखा प्रभु ने, परम प्रभु ने कई बार बोला है कि राधा रानी और कृष्णा जी की लीला को ऐसे ही किसी के सामने भी नहीं बोलते हैं और ज्यादा डिटेल में भी नहीं बोलते हैं. तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा उस पर जस्टिस कर सकूं. तो राधा रानी को समझने के लिए उससे पहले हमको कृष्ण को समझना होगा, क्योंकि कृष्ण तत्व और राधा तत्व दे गो टुगेदर. राधा और कृष्ण जो हैं वो एक साथ रहते हैं, एक साथ सब जगह. वो एक तरीके से आप मान, एक 1 सेकंड आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग.
1 second प्रभु जी. I'll just do it. Sorry. तो थोड़ा पहले भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम जानते हैं. वैसे तो हमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो बहुत कुछ सुना ही है. मैं बस थोड़ा सा उसको बस एक तरीके से रिकैप करूंगा ताकि हम भगवान श्री कृष्ण को समझते हुए श्रीमती राधा रानी को समझ पाए. तो जैसा कि 2 हफ्ते पहले जो जगन्नाथ राम प्रभु जी ने जो क्लास ली थी, वो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि हु इज कृष्णा, व्हाट इज हिज पोजीशन, what he, I mean, who belongs to him, basically everything belongs to him. तो वो सब चीजें थोड़ा सा शॉर्ट में लेंगे हम. तो भगवान श्री कृष्ण एब्सोल्यूट ट्रूथ हैं. जैसा कि उन्होंने बताया था कि अगर आप सोचें कि एक देश का ट्रुथ क्या है, अगर आप सोचें कि उस देश का प्रधानमंत्री इज लाइक एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो वो नहीं है, क्योंकि हर 5 साल में प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं, राष्ट्रपति चेंज हो जाते हैं. तो इसका मतलब है कि वो ट्रुथ नहीं है. देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट. अगर आप सोचें कि हम इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तो वो भी नहीं है, क्योंकि हजारों ब्रह्मांड है, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, उन सब के अलग अलग ब्रह्मा है, तो उससे भी ऊपर कुछ है. तो ऐसे करते करते हम महाविष्णु और वहां से लेके जो कृष्ण के पास पहुंचते हैं. जैसे वो बताते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो ऑफिस में भगवान विष्णु है, और घर में हॉलीडे मूड में जो है वो कृष्ण है, जो पूरे रस से भरे हुए हैं. तो दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ. एंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सन. उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं है, और सब कुछ उनसे ही होता है. उन्हीं ने अपने आप को एक्सपेंड करके पहले बलराम जी को बनाया है, उन्हीं से ही राधा रानी आई है, उन्हीं से ही जितने भी हमारे भगवान हैं, देवतागण हैं, सारे जीव हैं, वो सब उनसे ही आते हैं. तो ही इज द सुप्रीम. जब भगवान कृष्ण से पूछा गया कि भगवद गीता में कि आप क्या आप सबसे बड़े हैं, तो वो खुद कहते हैं, वो क्लेम करते हैं कि यस, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे बराबर भी कोई नहीं है. तो उनसे बेटर होने की तो बात ही नहीं है कोई भी. फिर भगवान श्री कृष्ण को जो समझना चाहें तो उनके कई अवतार हुए हैं. जैसे हम कहते हैं कि 10 अवतार मेन है, बट एक्चुअली बहुत सारे अवतार हैं. कुछ सत्यावीश अवतार हैं, कुछ डिफरेंट पर्पस के अवतार हैं, कुछ डिफरेंट पर्पस के अवतार हैं. जैसे कि नरसिंह देव भगवान है, वामन देव हैं, वराह देव हैं, राम जी हैं, जो बहुत राम और कृष्ण जो ये दो उनके कहते तो अवतार हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, वो खुद अवतारी हैं. जो द्वापर युग में, ये मैं आपको एक ये भी चीज बताना चाहूंगा कि इस वाले जो हम चतुर्युग में चल रहे हैं, उस चतुर्युग में वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि उस द्वापर युग के में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, और जिस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, उसके कलयुग में भी वो खुद आते हैं. तो इसलिए श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु वो अवतारी हैं, वो खुद स्वयं भगवान उतर के नीचे आए हैं. जो 100 टाइम्स का जो ये चलता है चतुर्युग, उसमें किसी एक में आते हैं एक बार, तो वो इस बार का है. तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द एसोसिएशन बाय द गुरु शिष्य परंपरा. फिर उसके बाद ब्रह्मा कौन है, वो कृष्ण कौन है. कृष्ण वो है जिनको ब्रह्मा, जो 4 चतुर्मुखी ब्रह्मा, जिनको चारों वेद अपने दिमाग में कंठस्थ हैं, जिन्होंने चारों वेदों को आगे बढ़ाया है, वो भगवान कृष्ण के आगे नाक रगड़ते हैं. कब? ब्रह्म विमोहन लीला में, जब वो भगवान कृष्ण और उनके गोप ग्वालों को चुरा लेते हैं, तो जब वो उन्हें पता लगता है कि ये तो ब्रह्मा वो जी कृष्ण जी ही हैं, तब वो आके उनके सामने नाक रगड़ते हैं. ना सिर्फ वो, पूरे इस भौतिक जगत के सारे ब्रह्मा जी आते हैं, वो सब को दिखाते हैं कि ये देखो कि तुम कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं हो, तुम ब्रह्मा हो, बट लेकिन तुम्हारे जैसे और ब्रह्मा भी हैं. कोई 10मुखी ब्रह्मा है, कोई अष्टमुखी ब्रह्मा है, तो चतुर्मुखी ब्रह्मा इज नॉट द सुप्रीम. शिव भगवान जो हमेशा भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण के नाम की जाप करते रहते हैं, उनके बारे में मैं अभी बताएंगे आगे कि उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के ऊपर एक बहुत अच्छी स्तुति लिखी है. वो भी हमेशा राम कथा और सब राम चीज के लिए करते रहते हैं. इंद्र, जिन्होंने गोवर्धन लीला जो हुई, जिसमें उन्होंने बहुत अत्यधिक बारिश की, उसमें वो इंद्र आके उनके सामने नाक रगड़ते हैं. वरुण देव, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बच्चों ने जन्माष्टमी पे जो बच्चों ने प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने दिखाया था कि नंद बाबा को कैसे वरुण देव जो है बंदी बना लेते हैं. तो वरुण देव बोलते हैं कि आप भगवान कृष्ण बलराम आप हमारे सामने आए, तो मेरी ये बहुत बड़ा सौभाग्य है. मैं देवता होके भी नहीं पा सकता आपको, अगर आपको मैंने पा लिया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है. इसी प्रकार चंद्रदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, यमराज, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी आप जानते हैं, वो सब के सब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं.
और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहते हैं। तो अब हम तो ये सब लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि भगवान की भक्ति के क्या भाव हैं। वैसे तो कई भाव हैं, लेकिन जो मुख्यतः 5 भाव आते हैं उसमें से सबसे पहले आता है शांत भाव। उसमें क्या होता है कि आप भगवान आप शांति से मतलब अपनी करते हो भक्ति भगवान के नाम की। आप जैसे आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, बट यू जस्ट शांति से आप अपनी भक्ति करते हैं। दूसरा होता है दास्य भाव, जैसा कि हनुमान जी ने किया कि वो भगवान के साथ रह के उनकी सेवा करते हैं हमेशा और उनके दास बनकर। उसके बाद आता है साख्य भाव, जैसे कि अर्जुन ने किया। अर्जुन और कृष्ण का जो रिश्ता था वो साख्य एक मित्रता का था, और उन्होंने हमेशा उस मित्रता में थोड़ी समानता होती है, जैसे कि आप थोड़ा एक दूसरे को मित्र की तरह ट्रीट करते हो, तो वैसा साख्य भाव होता है। उसके बाद वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस होता है आपका माता पिता और बच्चे के बीच जो होता है। जैसे यशोदानंद बाबा ने जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो रस का आस्वादन किया वो वात्सल्य रस था। अब उसके बाद होता है माधुर्य रस, जो सबसे प्रिय रस है, सबसे अच्छा रस है। माधुर्य रस में क्या होता है, इसको श्रृंगार रस भी कहते हैं। इसमें आप बेसिकली जो पति पत्नी का रिलेशन होता है वो माधुर्य रस कहा जाता है। मैं ये आपको थोड़ा डिफरेंट लेवल पे भी बताऊंगा कि भौतिक में क्या है और आध्यात्मिक में क्या है। तो माधुर्य रस को पहले एक बार समझते हैं कि उसके 2 प्रकार हैं, एक स्वकीय रस, एक परकीय रस। स्वकीय रस होता है जो शादी के अंदर हो, आपके विवाह, जिससे आप विवाहित हो उसके साथ जो आप अपना संबंध स्थापित करते हो, जो आप अपनी जो कर्म करते हो, ये सब करते हो, वो स्वकीय रस है। परकीय रस जो है वो होता है शादी के बाहर, विवाह के बाहर, मतलब कि आप अपनी जिससे आप विवाहित नहीं हो लेकिन उसके साथ भी आप थोड़ा निजी काम करते हो, तो उसको कहते हैं परकीय रस। अब मैंने आपको बोला स्वकीय और परकीय, तो हम सबसे पहले हमारी बुद्धि कहाँ गई कि पति पत्नी के बीच का रिलेशन एंड पति पत्नी के शादी के बाहर का रिलेशन। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद दैट? व्हाटएवर वी अंडरस्टैंड दैट इज द भौतिक वे, दैट इज द मटेरियल वे। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं। कभी हम किसी इच्छा के लिए करते हैं, हम कभी किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे होते हैं। कभी करुणा आई किसी पे बच्चे के लिए किया, कभी किसी के लिए किया, तो वो सब कर्म कहलाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में भगवान करते हैं और भगवान के भक्त करते हैं वो लीलाएं होती है। भगवान जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम भाव में करते हैं, उनमें लेश मात्र भी कंटेमिनेशन नहीं है। वो उनका हृदय शुद्ध है, उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनका हृदय शुद्ध है। और जो स्वकीय भाव होता है, जैसे उनकी जो 16,108 पटरानियां थी, वो सब उनका स्वकीय भाव था। परकीय भाव उनका गोपियों के साथ होता है, जो उससे बाहर की गोपियां हैं, राधा रानी जिनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वो हो गया परकीय भाव, जिसमें आप विवाह के बाहर कर रहे हैं। और आप ये खुद समझ सकते हैं कि ये स्वकीय और परकीय हमारी भी हमने भी देखा है कि हमारी हिस्ट्री में भी आता है कि लोगों के शादी के बाहर रिलेशन होते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है ये आप जानते हैं कि उसकी लाइफ खराब हो जाती है। बट दिस इज दी इमेज, रिवर्स इमेज। अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो चीज सबसे ऊपर है वो मटेरियल वर्ल्ड में सबसे नीचे है, ये बताया था अर्जुन सदा प्रभु ने। तो अगर वहां पे परकीय भाव सबसे उच्च है तो यहाँ पर वो परकीय भाव सबसे निम्न है। इसलिए हमें वो नहीं करना चाहिए। हम उसके लेवल पे नहीं है अभी। हम धीरे धीरे ऊपर करके जा सकते हैं जब हम शुद्ध भक्त बन जाएं और भगवान के गोपी भाव को अगर हम कुछ हद तक आस्वादन करना चाहें, तब हम एक बार को सोच सकते हैं, बट अभी नहीं। तो परकीय भाव में भगवान श्री कृष्ण जो अपनी विवाह के बाद, वैसे तो खैर सब उनका ही है, उनसे ही सब विस्तारित हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति जो उनसे ना हो। उनका कण जो है, हम वो विभु हैं और हम अणु हैं। हमारे अंदर परमात्मा अणु तो है ही सबके अंदर। तो वो आपका उनके पार्ट हैं, उनके वी आर काइंड ऑफ उनके हम बच्चे हैं, उनके एक तरीके से पत्नी भी है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो। लेकिन वो जो परकीय भाव का रस आस्वादन करते हैं वो सारी गोपियों के साथ करते हैं, जिनमें डिफरेंट जो हम थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। तो जो डियरेस्ट डिवोटीज होते हैं कृष्ण के, अब जो कृष्ण की जो भक्ति करते हैं तो भक्ति बढ़ते बढ़ते आपके ऊपर तक जाती है। तो जो सबसे डियर मोस्ट कृष्ण के जो भक्त हैं वो हैं गोपियां। अब वृंदावन में
बहुत अनेक ब्रजमंडल में पूरे वृंदावन एरिया, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, वो सारा जो एरिया कंबाइंडली वहां पे लाखों लाखों गोपियां हैं और वो भगवान की डियरेस्ट डिवोटीज हैं। जैसे एक बार ब्रजेश प्रभु ने जो गोपी चंदन वाली हमको प्रसंग बताया था, जो हम अपने मस्तक पे धारण करते हैं, वो गोपियों के चरणों की जो रज है मथुरा वृंदावन में, उनसे बना है गोपी चंदन। और वो जब भगवान श्री कृष्ण को सर दर्द होता है तो गोपियां कहते हैं कि हाँ, हमारे चरणों की रज ले जाओ, क्योंकि अगर उनके एक बार भी सर दर्द को दूर करने का सौभाग्य हमें मिल सके तो हम लाखों करोड़ों बार नीचे गिरने को तैयार हैं, उसके लिए नरक में जाने के लिए तैयार हैं। तो वो है गोपी भाव, जो कि बहुत बहुत ज्यादा ऊपर है। उन लाखों गोपियों में से भगवान श्री कृष्ण को 16,000 गोपियां उनसे बेटर है, उनके लिए उनका लगाव ज्यादा है। उसमें से 108, फिर उसमें से 8, और उनमें से जो दो टॉप मोस्ट गोपियां हैं वो है चंद्रावली और राधा गोविंद प्रभु, लाल गोविंद प्रभु बताते हैं कि ये दो गोपियों की दो टीम है। जैसे आप कहते हैं ना कि आपको किसी चीज को एंजॉय करना है, दे आर ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा। तो जो भगवान को जो आनंद देना चाहते हैं, वो उनकी दो टीम है, एक राधा जी की टीम है और एक चंद्रावली की टीम है। तो कभी ये कुछ करती है एक्टिविटी, जैसे झूलन हो गया या कुछ और डिफरेंट एक्टिविटीज हो गई, ये एक चंद्रावली की टीम हो गई। जो तो इनका आपस में कंपटीशन चलता रहता है, जो बहुत ही मधुर कंपटीशन रहता है। तो अब हम भगवान श्री कृष्ण के शक्ति के बारे में बात करते हैं। तो वो भक्ति थी जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति गोपियां करती हैं, जो सबसे ऊपर लेवल पे हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक बहिरंगा शक्ति है, जो कि ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत जो है पूरा, जो पूरे संपूर्ण जगत का 1/4 भाग है। और दूसरी है अंतरंगा शक्ति, जो भगवान की स्पिरिचुअल, जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल स्पेस कहते हैं, जो कि 3/4 भाग है पूरे जगत का। अब जो अंतरंगा शक्ति, ये हम थोड़ा आई थिंक नेक्टर ऑफ डिवोशन में हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो बहिरंगा शक्ति को हम दुर्गा देवी भी कह सकते हैं, भौतिक जगत का पूरा। अंतरंगा शक्ति को राधा रानी, जो उनको मेन करती हैं, जो उनको आनंद प्रदान करती हैं। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो स्पिरिचुअल और जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, वो 3 प्रकार, जैसे भगवान 3 प्रकार से, भगवान का जो पूरा शरीर है वो 3 चीजों से बना हुआ है, सत, चित और आनंद। तो उनकी 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। संदिनी शक्ति जो सत शक्ति होती है, संवेद शक्ति जो चित शक्ति होती है, और आलादिनी शक्ति जो कि आनंद शक्ति होती है। तो आलादिनी शक्ति इज सर्वश्रेष्ठ, आलादिनी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है तीनों में, क्योंकि वो भगवान को आनंद प्रदान करती है, भगवान को प्लीज करती है। तो राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की आलादिनी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण को जो भी आनंद प्रदान होता है किसी भी के थ्रू, तो वो सब राधा रानी के थ्रू ही आता है। राधा रानी ही बेसिकली अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के डिवोटीज हों, चाहे उनके कोई और भी हो, काम करने वाले, कोई भी जो हो, जो बेसिकली तो भक्त ही है सब। तो उनमें भगवान अपने आप को राधा रानी से एक्सपेंड करते हैं, और राधा रानी अपने आप को सब लोगों से एक्सपेंड करती है। लेकिन राधा रानी एक्चुअली छुपी हुई रहती हैं, तो उनको थोड़ा सा हम डिटेल में आज समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम राधा शब्द के बारे में डिस्कस करते हैं। But actually, before that, is there any question till on Krishna Shakti and different types of bhakti? Nothing? Okay. तो अब हम थोड़ा सा राधा रानी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि राधा वर्ड जो नाम, राधा नाम जो है उसकी क्या महिमा है। तो राधा जो शब्द है वो आराधना से आता है। आराधना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, उनके लिए सब कुछ करना। सब आराधना मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ उनमें खोए हुए हो, है ना। तो वो है भगवान, वो है राधा नाम शब्द का अर्थ। वो कहाँ से आता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये बात बोलते हैं कि द मोमेंट आई हियर द साउंड रा फ्रॉम एनीवन्स लिप्स I grant them my supreme प्रेम भक्ति। जैसे ही मैं किसी के मुंह से रा नाम सुनता हूं, मैं उसको अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर देता हूं। ये तो आधे शब्द का है, आधे शब्द का सिग्निफिकेंस। उसके बाद क्या कहते हैं, द नेक्स्ट मोमेंट आई हियर द साउंड धा, I completely lose myself and become intoxicated in राधा नाम।
इस आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के कि वो पूरे 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 इसको व्यक्तिगत रूप से आपको दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि क्या क्या वो भक्ति करते हैं। तो उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बिफोर दैट कि राधा नाम का जो शब्द है, नाउ बिकॉज ऑफ माई ग्रेट लॉन्गिंग टू हियर द नेम ऑफ माई बिलव्ड आई रन आफ्टर द डिवोटी हु चैंट राधा नाम। जो राधा नाम जो जपता है, मैं उसके पीछे आ जाता हूँ, उसको मैं अपनी भक्ति और उसके पीछे मैं पागल हो जाता हूँ, उसके मतलब उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, वो उस भक्त के लिए जो राधा नाम जपता है। अगर अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब राधा नाम जपना है, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, तो हमें तो महामंत्र जपने को बोला गया है ना, इस्कॉन में सब महामंत्र जपते हैं, तो क्या भगवान राधा नाम महामंत्र में आता है? तो अब थोड़ा सा महामंत्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो राधा का एक पर्यायवाची है हरा, हरि भगवान श्री कृष्ण है, हरा राधा रानी है। तो अब जब भगवान श्री कृष्ण उनको प्यार से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हरे। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं हरे, राधा रानी बोल रही है कृष्ण, हरे कृष्ण। ये है उनका मिलन, जब वो साथ में है दोनों। और जब उनका विरह हो जाता है, जब वो दूर हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं कृष्ण कृष्ण हरे हरे, एंड देन जब वो दोबारा मिलते हैं तो वो बोलते हैं हरे राम। जो राम है वो राधा रमणीय का शॉर्ट फॉर्म है। तो राधा और रमणीय जो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो उनके लिए बोला जाता है राम। तो वो बोलती हैं हरे, ये बोलते हैं राम, बोलते हैं हरे राम। फिर जब वो बिगड़ गए तो वो बोलते हैं राम राम हरे हरे। तो जो हम महामंत्र जो हम जपते हैं, इट इज नथिंग बट कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिलन और भगवान श्री कृष्ण ने राधा का विरह। तो यही चलता रहता है, यही उनकी एक बहुत बड़ी लीला है, जिसमें को हम अगर समझते रहें तो हमारा समझते समझते पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, पर हम समझ नहीं पाएंगे उसको। तो इसलिए भगवान जो है गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वो ये महामंत्र हमको देते हैं। तो रूप गोस्वामी एक बार भगवान गौरांग प्रभु को इंटरव्यू लेके पूछते हैं, भगवान गौरांग प्रभु बताओ आपको कैसा लग रहा है, आप राधा और कृष्ण के मिलित स्वरूप में यहाँ पे आए हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो वो बोलते हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते, वो बोलते हैं कि मैं इतना ज्यादा ये देख रहा हूँ कि राधा रानी का जो भाव है, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए भक्ति भाव है उनका, कि मैं उनके नाम के बिना, उनकी सेवा के बिना नहीं रह सकती। वो भाव में उनके नाम मुंह से सिर्फ निकलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र का एक अर्थ ये भी है कि हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, मुझे आप अपनी सेवा में एंगेज करो, आई वांट टू एंगेज इन योर सर्विस कंप्लीटली। वो हमारा भाव, वो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि राधा और कृष्ण का जो मिलन और विरह है, वो हमको महामंत्र में दिखाई देता है। महामंत्र में हमको उस भाव से करना चाहिए। तो नाम अपराध और चैंटिंग, द वे ऑफ वर्किंग चैंटिंग, वो तो ब्रजेश प्रभु ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल। अब आते हैं तो ये हमको कृष्ण भगवान के बारे में हमने जान लिया कि हु इज कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। अब राधा नाम का वर्ड हमने जान लिया कि राधा जो है उस वर्ड का क्या मीनिंग है। नाउ लेट्स सी कि कृष्ण जो है, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, और जो राधा रानी है, उनके बीच रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को श्री बोला जाता है, श्री कृष्ण, है ना। तो क्यों बोला जाता है? श्री का अर्थ क्या है? श्री का अर्थ होता है जो धनी है, जो रिच है, जिसके पास यश है। भगवान श्री कृष्ण की जो 6 उनकी ऑपुलेंसेस हैं, जिसमें वो पूरे फुल हैं। तो सिर्फ देखा जाए तो रियल वर्ड जो श्री है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए यूज होता है, क्योंकि जो सब चीज में परिपूर्ण है वो ही श्री है। तो श्री सिर्फ और सिर्फ भगवान हो सकते हैं। अब उसके बाद आता है श्रीमती, भगवान श्री कृष्ण की श्रीमती। जैसे हम बोलते हैं कि ये श्री लेट्स से XYZ है और इनकी पत्नी श्रीमती PQR, है ना। तो श्रीमती कौन है? उनकी पत्नी, उनकी जिसकी मति, श्री की मति जिसमें लगी हुई है, वो श्रीमती है। तो राधा रानी को ही सिर्फ श्रीमती राधा रानी कहा जाता है, और किसी को आप नहीं कभी कहेंगे कि श्रीमती लक्ष्मी जी, श्रीमती रुक्मणी जी, श्रीमती सीता जी, कभी नहीं सुना मैंने। श्रीमती सिर्फ और सिर्फ राधा जी के लिए किया जाता है। उनका जो बरसाने में मंदिर है उसको भी कहते हैं श्री जी के मंदिर में हम जा रहे हैं। तो ये है श्री और श्रीमती का रिलेशन जो आप देख सकते हैं। श्रीमती राधा रानी इज द एटर्नल कंसोर्ट ऑफ श्री कृष्णा। वो उनकी उनकी मतलब उनकी ये मान लीजिए कि उनकी प्राण प्रिय है, उनकी जान है वो
श्री कृष्ण और जो राधा का संबंध है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसको समझा पाऊँ, बट आई डोंट नो, क्योंकि हम इतने मेटेरियली कंटेमिनेटेड है कि आई डोंट नो कि वो जो उनका एक्चुअल रिलेशन है प्रेम भाव का, जो उनकी प्रेम भक्ति का भाव है, वो आई डोंट नो कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट श्रील प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं कि जो भक्त जोड़ते हैं भक्ति में, वो करते हैं विधि भक्ति। जैसा कि ब्रजेश प्रभु ने बताया कि हम विधि मार्ग में चलते हैं, तो हम एक्चुअली लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम उस भाव को समझ ही नहीं सकते। जो प्रेम राग है और एक भक्ति एक विधि मार्ग है और एक राग मार्ग है, जिसमें आप एक्चुअली उस स्तर पर पहुंचते हो जब आप उसको समझ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो संबंध है, उसको समझने के लिए जो कॉन्शियसनेस आपको चाहिए, वो विधि मार्ग में बहुत आगे जाने के बाद, विधि मार्ग को कवर करने के बाद आएगा। तो अभी जो हम चल रहे हैं वो विधि मार्ग पे चल रहे हैं कि तो बेसिकली हम लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए हम राधा जी और कृष्ण जी के संबंध में, उनकी लीलाओं के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बट लेकिन हमारे जो जितने भी आचार्य हैं, जैसे ही गौरांग महाप्रभु जब आए, उन्होंने श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के विरह में जितनी भी सारी लीलाएं की, तो उसके बाद की जो चेन चली है, जिसमें हमारे षड गोस्वामी हो गए और हमारे जितने भी आचार्य हो गए, उन्होंने भर भर के लिखा है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट एक चीज लेते हैं चैतन्य चरितामृत में, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है। तो अमरेंद्र प्रभु बताते हैं कि उन्होंने 99 वर्ष की आयु में ये लिखा है। तो 99 वर्ष की आयु में तो कोई झूठ तो लिखेगा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान मरने वाला होता है तो कि वो सच ही बोलता है और उसका छल कपट चला जाता है। तो इसका मतलब है कि गलत तो होने का कोई चांस नहीं है। तो क्या बोलते हैं वो, राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। तो राधा जी जो है वो पूर्ण शक्ति हैं और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। जैसा अभी कुछ दिन पहले कोट भी आया था कि भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी उनकी शक्ति है। तो शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई वैल्यू नहीं है। कहते हैं ना कि राधा के बिना कृष्ण आधा, मैं तो कहता हूँ आधा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण राधा के बिना वो कुछ नहीं कर सकते और राधा उनके बिना कुछ नहीं करती, तो दे आर काइंड ऑफ वन। दुई वस्तु भेद नाही, वो दोनों एक ही हैं, शास्त्र प्रमाण देता है इस चीज का। तो एक ये भी हम तरीका कह सकते हैं कि जैसे अगर ये श्री कृष्ण है और ये राधा जी हैं, तो हम ऐसे देख पाते हैं, राधा जी जो है वो छुपी रहती हैं कृष्ण जी के पीछे, लेकिन कृष्ण और राधा साथ इसलिए हमें दिखाई नहीं देती हैं वो। तो एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुपी हुई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को शक्ति और राधा रानी दे रही है। अब एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, जो मैंने भी इससे पहले भी जब मैं इस्कॉन से जुड़ा था, उससे पहले हमने बहुत बार सुना था, तो मैं कन्विंस नहीं था कि क्यों ऐसा है, कि भाई क्या उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, आर दे मैरिड और नॉट। तो अब जैसा हमने डिस्कस किया कि स्पिरिचुअल लेवल की अंडरस्टैंडिंग अलग है और मटेरियल लेवल की अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो स्पिरिचुअली वो रियलिटी है कि उनकी शादी हुई भी हुई है और नहीं भी हुई है। नहीं क्यों हुई है? क्योंकि वो दोनों है ही एक। तो जो आप अपने दो हाथों को कितनी बार मिलाओगे? क्या मिला सकते हो? आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो क्या आप उससे शादी करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप ही हो, है ना। तो राधा रानी और कृष्णा जी जो है वो दोनों एक ही हैं, तो शादी होने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो दो जिसमें एक जहाँ भी एक मेटीरियल हो जाती है कहने का बात, लेकिन उससे भी बहुत ऊपर है। अगर आपने नोट किया हो तो मेलबर्न में जो टेम्पल में गौर निताई की जो भगवान गौर निताई की जो मूर्ति है, उससे पहले प्रभुपाद जी से पहले शायद एक मूर्ति है जिसमें राधा जी और कृष्ण जी ऐसे साथ में खड़े हुए हैं। तो ऐसा फील होता है कि जैसे एक ही बॉडी से दो फेस निकल रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट। तो स्पिरिचुअली उनकी शादी नहीं हुई है, हुई इसलिए भी हुई है क्योंकि वो पति पत्नी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो अपनी जो लीलाएं करते हैं वो पति पत्नी है। तो वहां पे वो स्वकीय भी है और वो परकीय भी है ना, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ऊपर बहुत हाई अंडरस्टैंडिंग उसके लिए चाहिए कि, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वो स्वकीय भी कैसे हो सकता है और परकीय भी कैसे हो सकता है, क्योंकि एक तरह से तो वो उनसे शादीशुदा है एज अ डिफरेंट एंटिटी, और एक तरह से वो आप परकीय भी कह रहे हो कि वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन वो आप बाहर जा रहे हैं। तो मेटीरियली हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, शायद उससे हमें स्पिरिचुअली अंडरस्टैंडिंग आए। मेटीरियली बोला गया है कि वो एक तरीके से नाटक करते हैं। क्या नाटक करते हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं हूँ और शिवानी है मेरी वाइफ, है ना। तो रियलिटी में इन मेटीरियल वर्ल्ड वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। नाउ लेट्स सपोज कि हम एक नाटक में भाग लेते हैं
जिसमें कि मेरी शादी, मेरी पत्नी कोई और है और शिवानी की पति कोई और है नाटक में। बट क्योंकि हम नेचुरली हस्बैंड वाइफ हैं, तो नाटक में भी जब वो किसी दूसरे अपने नाटक वाले पति के साथ एक्ट करेंगी तो वो इतना नेचुरली नहीं कर पाएंगी, वो वाली फील नहीं आएगी। और जैसे मैं अपने किसी और पत्नी के साथ नाटक में भाग लूं तो वो फील नेचुरली नहीं आएगी। लाइक दैट इज काइंड ऑफ अ, जो कहते हैं ना कि एक मुखौटा लगा लेते हो, नाटकीय रूप में आप एक मुखौटा लगा लेते हो। रियल वर्सेस रियल इज डिफरेंट, यू नो, रियल वर्सेस रील इज डिफरेंट। तो वो चीज है वहां पे। तो राधा रानी और कृष्ण जो है वो ऊपर से पति पत्नी, अंदर से वो एक ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो वो लीला करने आए हैं, जो हमको दिखाने आए हैं, वहां पे वो एक दिव्य नाटक कर रहे हैं। तो राधा रानी की जो विवाह होता है वो अभिमन्यु नाम के गोप से होता है, लेकिन दैट इज ओनली फॉर दिखावा, वो सिर्फ दिखावे का रिलेशन है। वो वैसा रिलेशन नहीं है कि जो आप सोचें कि भाई जो यहाँ पे पति पत्नी का होता है। वो आनंद उनको भगवान श्री कृष्ण के साथ ही आता है और कृष्ण को भी राधा रानी के साथ ही आता है। तो मटेरियली आप समझिए कि अगर जो नाटक में मैं और शिवानी अगर आपस में वहां मिलते हैं, देन वी विल have more natural relation, you know, more natural discussion and all those things. But even with in drama we will not be that natural with the other person. तो ये चीज है जो उनका रिलेशन में थोड़े उससे उपमा, उसको थोड़ा हम कंपेयर कर सकते हैं। बट इट इज फार बेटर देन दैट, यू नो, कि हम जिसको जो वो एक्ट भी करते हैं वो भी एक्ट हमारे समझ से ऊपर है। और स्पिरिचुअली में जो उनका ये रिलेशन है कि वो दोनों एक हैं और वो दोनों अलग भी हैं, वो एक भी हैं और अलग भी हैं और दोनों एक दूसरे को स्वादन कर रहे हैं, दैट इज इवन बियॉन्ड देन एटलीस्ट माय अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स गो नेक्स्ट। तो अब क्वेश्चन आता है कि बहुत बड़ा ये क्वेश्चन आता है कि क्या भागवतम में राधा जी का नाम है? अब राधा जी का नाम वैसे डायरेक्ट तो सुनने में नहीं आता, प्रत्यक्ष रूप से राधा रानी का नाम नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राधा रानी का नाम है। तो सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि भागवतम सुना ही किसने है? श्री शुक गोस्वामी ने। आता है ना श्री शुक उवाच। तो वो श्री कौन है? अभी हमने डिस्कस किया, श्री जो है वो कौन हो सकता है? जिसके पास सारी चीजें परिपूर्ण हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण को इज नदर अदर देन द राधा। तो जो श्री शुक उवाच है, मीनिंग है, वो बोलते हैं कि राधा रानी का तोता बोलने बोला। शुक का मतलब होता है तोता। तो राधा रानी के परम पार्षद हैं सुखदेव गोस्वामी। तो श्री शुक आवाज जितनी बार भी नाम आया है वो इनडायरेक्टली यही बोल रहा है कि राधा रानी का तोता बोल रहा है और वो अपनी कथा गा रहा है, कथा गा रहे हैं। मतलब इन दैट सेंस की अब उस भाव में अगर बोले तो ये बोलेंगे कि ये शिव राधा रानी का तोता है जो अब परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है चलो जी वो सुखदेव गोस्वामी हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली क्यों नहीं बोला? तो उसके भी दो कारण है। पहला कारण ये है कि अगर सुखदेव गोस्वामी राधा नाम ले लेते तो वो 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाते। क्यों मूर्छित हो जाते? क्योंकि वो भगवान जो राधा रानी के नित्य पार्षद हैं वो उनके अंदर इतने रमे हुए हैं कि अगर वो राधा नाम ले लें तो उनका माइंड जो है वो बहुत ऊपर प्रेम भाव में पहुंच जाएगा एंड देन ही विल बी यू नो इनकॉन्शियस। वो मूर्छित हो जाएंगे 6 महीने के लिए। अब अगर वो 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए तो यहाँ पे तो 7 दिन में सुनानी है पूरी भागवतम, तो राधा के नाम से तो बाधा हो जाएगी, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने बड़ी स्मार्टली राधा नाम को छुपा के लिया है या इनडायरेक्टली लिया है, डायरेक्ट नहीं बोला गया। दूसरा कारण ये है कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे तब वहां पे सिर्फ परीक्षित महाराज नहीं थे, वहां पे बहुत सारे और भी स्वामी और संत लोग थे। अब उनको नहीं पता कि उनकी कॉन्शियसनेस क्या है, क्या वो भगवान श्री कृष्ण और राधा को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने राधा नाम वहां पे डायरेक्टली नहीं लिया, उन्होंने इनडायरेक्टली ही नाम लेके अपनी कथा का वर्णन किया। अब एक चीज यहाँ पे ये भी समझने वाली थी कि क्यों उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वो प्रीशियस थिंग्स हैं। अब आप ये सोचो कि आपको जो सबसे प्रिय है, अब हम जैसे मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमें प्रिय है कि भाई हमारा वॉलेट हम जेब में रखते हैं, हम खुला तो ऐसे रख नहीं देते कि भैया कोई भी देखे कि उसमें क्या है क्या नहीं है ना। हमारी प्रीशियस थिंग्स क्या है कि हमारा बैंक अकाउंट, मान लो बैंक अकाउंट है, जो भी है, मतलब जो भी आप मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी एग्जांपल है तो आप उसको ऐसे दिखाते नहीं रहते हैं। जैसे आपने कुछ बहुत अच्छा किया या बहुत आपने पर्सनली कुछ अच्छा किया जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, वो चीज आप सबको नहीं दिखाएंगे, सबको नहीं बताएंगे, है ना।
that is not for public, that is not for open public and everyone, you know, that is for very निजी लोग जो आपके बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं या बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, उनको आप वो चीज बताएंगे। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने वहां पे राधा नाम को, राधा तत्व को छुपा के रखा, क्योंकि वहां पे इतने सारे संत थे, लोग थे, तो उनको सबको वो खुले में नहीं बता सकते थे। और आचार्यगण ये भी बताते हैं अगली बात की, जो भगवान श्री जैसे भागवतम इज नथिंग बट द वांग्मय स्वरूप ऑफ श्री कृष्ण, वो वांग्मय स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो एक तरीके से वो भागवतम में ही समा जाते हैं। तो भगवान जो भागवत के जो 12 स्कंद हैं, जो 12 कैंटो हैं उनके, वो भगवान श्री कृष्ण का ही शरीर का पार्ट है। जैसे पहला दूसरा कैंटो को हम भगवान श्री कृष्ण के कमल चरण कहते हैं, चरण कमल। तीसरे चौथे को उनको हम उनकी जांग कहते हैं। पांचवें को हम उनकी नाभि कहते हैं। छठे को हम उनकी वक्षस्थल कहते हैं। सातवें आठवें को हम उनकी भुजाएं कहते हैं। नौवें को हम उनका गला कहते हैं, कंठ। 10वें को हम बोलते हैं उनका मुखमंडल, लोटस फेस। 10वां कैंटो जो है, जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो श्री शुकदेव गोस्वामी ने 9 कैंटो सिर्फ और सिर्फ 10th कैंटो की फाउंडेशन, उसकी भूमिका जमाने के लिए सुनाए हैं। जब 3 या 4 दिन तक कंटिन्यू, 3 या 4 दिन रात कंटिन्यू सुनते रहते हैं परीक्षित महाराज, तो वो रोकते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि महाराज अब रुको, भक्तों की, राजा महाराजाओं की बहुत हो गई कथा, अब आप मुझे श्री कृष्ण की कथा सुनाओ। जो कृष्ण है, जो कृष्ण तत्व है, वो क्या है? क्योंकि वो इतना तो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे बचाया था। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मुझे भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। और मेरे दादाओं को, यू नो, जो महाभारत में पूरा सब किया, वो सब श्री कृष्ण ने किया। तो आप मुझे उनकी कथा सुनाओ। तो 10वां कैंटो जो पूरा है, वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनके पूरे जीवन का वर्णन है, रासलीला, गोपियों का मिलना, वो सब कुछ उसमें है। तो दैट इज दी मुखमंडल, भगवान श्री कृष्ण का चेहरा। अब आप ये देखो, जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आप अभी कर रहे थे, जब भी करते हो, तो सबसे ज्यादा क्या देखते हो? उनका मुखमंडल देखते हो ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भागवतम में सबसे जो मधुर है वो 10वां कैंटो है। 10वें कैंटो में ही उनकी सारे जो निजी उनकी लीलाएं हैं, जो उनकी बहुत क्लोज लीलाएं हैं, जो आसानी से समझ नहीं आती है और ना ही आसानी से हमें किसी को समझानी चाहिए। आई मीन, जिन लोगों को, जो बड़े उच्च लेवल के जो हमारे गोस्वामीज और स्वामीज हैं, जो महाराजेज हैं, उनको जो समझ में आती है वो ऐसे ही हर किसी को भी नहीं समझाते हैं। तो वो बहुत ही निजी और उनका बहुत ही गुह्य मटेरियल है ये। उसके बाद 11वां कैंटो उनका माता है और 12वां कैंटो उनका हेड है। तो ये 12 कैंटो को भगवान श्री कृष्ण के शरीर के डिफरेंट हमें भाग बताए गए हैं। तो ये एक लर्निंग है यहाँ से कि जो 10th कैंटो, दैट इज द मोस्ट प्रीशियस कैंटो। जैसे भगवत गीता में जो भक्ति योग है, उन्होंने वो कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल बीच में डाला है, 7 से लेकर 12 तक, है ना, 18 अध्याय है। तो जो बीच के अध्याय है वो भक्ति है, क्योंकि भक्ति इज प्रीशियस, भक्ति इज दी प्रीशियस थिंग, वो जो सबसे निजी और गुह्य चीज है। तो जो भी चीजें हमारी वो होती हैं, बहुत ही प्रीशियस हमको होती हैं, जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थिंग होती है, उनको हम छुपा के रखते हैं, यू नो, हम उसको बीच में रखते हैं किसी चीज के, एकदम खुले साइड में नहीं रखते कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो उनकी मधुर लीलाएं हैं, वो सारी 10th कैंटो में आती हैं। कोई प्रश्न किसी का? एक्चुअली मेरा वो वीडियो व्यू चला गया है, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है किसी का वीडियो या ऑडियो। हाँ राहुल, एक क्वेश्चन है। हाँ जी बाबू। कि जैसे भगवान राम और सीता थे, तो वहां पे उस तरह की लीला नहीं है, उसमें पति पत्नी का ही है, वो भी वही रूप है, कृष्ण और राधा का ही वो है। हाँ जी। लेकिन कृष्ण और राधा के केस में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मतलब क्यों, समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? कि क्यों वो राम सीता की तरह भी तो प्ले हो सकता था, नाटक जो है वो राम सीता की तरह भी नाटक हो सकता था। प्रभु, यही तो भगवान की वो है कि जन्म क्या बोलते हो, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म और मेरा कर्म अगर समझ जाओ तो दोबारा जीवन में इस मृत्यु लोक में आने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए कि राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका एक मोटो था, राम जी को इसलिए भगवान का अवतार कहते हैं, वो विष्णु के अवतार थे, वो डायरेक्ट कृष्ण जी नहीं थे। जो कृष्ण का जो हॉलीडे मूड है ना, कि भाई बीच वाला मूड, कि भैया शर्ट डाली हाफ, और यू नो, अगर आप अपने आप को कंपेयर करो, हाफ शर्ट और बरमुडा में आप जा रहे हो, दैट इज द रिलैक्सिंग मूड ऑफ कृष्ण। लेकिन राम जी एज ए
एज एन एम, उनका एक मोटो था कि उनको क्या करना था, उनको उस समय के हिसाब से एक पत्नी का एग्जाम्पल सेट करना था कि मुझे एक पत्नी, मैं एक पत्नी होगी मेरी और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रहूंगा, हमेशा बड़ों का पालन करना और सब कुछ सीधा, एकदम सीधा। सर चलो मैं, अब आपने क्वेश्चन किया तो मैं लाल गोविंद प्रभु की एक बात बताता हूँ, बहुत बहुत अच्छी। भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ नवमी पर। अब आप 9 का पहाड़ा देखो, 9 18 जोड़ो, 9 27, फिर 9 36, फिर 9 45, फिर 9। यहाँ श्री कृष्ण हुए अष्टमी पे, 8 दूनी 16, 7 24 6, नेक्स्ट 32 5 40 4। वो नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं। उनका मूड को समझना इतना आसान है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनकी वो लीला पुरुषोत्तम है, वो लीलाएं करते हैं, वो मधुर रस। और वो एक अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर एक बार स्वामी कृष्ण प्रभु ने सुनाया था, उसमें बताया गया था कि जो सतयुग में हमारे नरसिंह देव भगवान आते हैं, वो एक डिजायर लेके जाते हैं कि मैं पुत्र बनूं, मैं वात्सल्य रस पाऊं। तो वो राम जी का लेते हैं और वो माता कौशल्या और दशरथ जी से वात्सल्य रस प्राप्त करते हैं। वो 2 डिजायर लेके जाते हैं कि मुझे मित्र बनाना है और मुझे जितने भी मेरे सारे ये संत लोग हैं, जितने भी, क्योंकि वो जब भी वो पूरे जो 14 वर्ष वनवास में उन्होंने व्यतीत किया तो इतने सारे अनगिनत संतों से वो मिले, सबकी ये हुई उनकी सुंदरता देख के कि काश ये मेरे पति बन जाए, मैं स्त्री हो जाऊं और ये मेरे पति हो जाए। क्यों? क्योंकि दैट इज द माधुर्य रस, जो भक्ति का उच्चतम वो है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेवल पर सोचते हैं। भक्ति का उच्चतम जो रूप है वो माधुर्य रस है। तो माधुर्य रस कैसे प्राप्त करोगे? भगवान को कैसे दोगे? स्त्री बन के दोगे। जैसा ब्रजेश प्रभु ने बताया था ना कि अगर जो फेक मतलब पार्शल वे जो हो जाता है, जो लोग सोचते हैं वृंदावन, वो सहजिया बन जाते हैं कि उनको एक्चुअल तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट वो सोचते हैं कि मैं भगवान को जो है वो कर दूंगा, उनको सेटिस्फाई करूंगा या उनको प्लेजर दूंगा, तो मैं स्त्री रूप ले लेता हूँ, तो सहजिया बन जाते हैं वो। प्रभुपाद भी कहते हैं कि वो दैट इज नॉट प्योर अंडरस्टैंडिंग, प्योर दैट इज नॉट प्योर भक्ति। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कृष्ण जी को मतलब सीधा कुछ काम करना ही नहीं है, उनके सारे काम टेढ़े हैं। वो लाल गोविंद प्रभु कहते हैं कि एक, मैंने एक्चुअली टेढ़े कृष्ण का एक पॉइंट भी रखा है आगे, तो मैं उस पर बोलूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो एकदम टेढ़े हैं। वो खड़े होंगे तो टेढ़े खड़े होंगे, बांसुरी उनकी टेढ़ी होगी, निगाहें उनकी टेढ़ी होंगी, सब चीज उनका टेढ़ा। यमुना की उनकी गली टेढ़ी, यमुना टेढ़ी, जिस गली में वो पैदा हुए वो भी टेढ़े, और सबसे ज्यादा बड़े तो उनके भक्त भी टेढ़े। तो कृष्ण जी की जो लीला है वो लीला पुरुषोत्तम है, और राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ही हैज समथिंग टू फुलफिल जो राम जी है। लेकिन हाँ ये बात है कि राम जी वाला जो मर्यादा पुरुषोत्तम, जब हम राम कथा सुनते हैं तो वो बहुत ही मधुर कथा है, वो भी एकदम मन को लुभाने वाली कथा है उनकी भी। तो डज दैट आंसर प्रभु आपका क्वेश्चन? हाँ लीला प्रभु, पुरुषोत्तम वर्सेस मर्यादा पुरुषोत्तम। थैंक यू, somewhat yeah. ओके ओके। तो फिर अब जब हम ये बात कर रहे थे कि अब भागवतम में राधा रानी का नाम आता है, तो उसी के आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा रासलीला के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली तो रासलीला को समझने की मेरी तो लेवल नहीं है, क्योंकि वो इट्स वेरी हाई टॉपिक, वेरी हाई कॉन्शियस पीपल टॉपिक। दैट्स व्हाई हम जब भी देखते हैं तो रासलीला का बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होता है। लेकिन मैंने जो भक्ति रसामृत महाराज जी का जो लेक्चर सुना है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा बताया है उसके बारे में, तो मैं वही बताऊंगा बस। तो कृष्णा जी जो हैं वो खुद ही वो अपनी बाईं तरफ से एक्सपेंड करते हैं राधा रानी को। आप देखेंगे हमेशा कि हर मंदिर में राधा रानी उनके बाईं तरफ होती है। और आप ये देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं, तो भगवान जितने भी आप मंदिर देखेंगे तो सारे क्या है, राधा वल्लभा, राधा गोपीनाथ, राधा रास बिहारी, राधा गिरिधारी, राधा, जितने भी भगवान श्री कृष्ण के नाम है। तो भगवान श्री कृष्ण तो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उनको शक्ति देने वाली सिर्फ और सिर्फ राधा है। तो हमेशा राधा ही रहेगा, पहले हमेशा राधा रहेगा, पहले स्त्री राधा एंड देन स्त्री सीता, जैसे सीताराम बोलते हैं ना जनरली, तो स्त्री का नाम पहले आता है क्योंकि वो शक्ति उनको देती है। राम जी की भी एक बहुत बड़ी कथा है कि राम जी ने जो किया वो सब और सब सीता की शक्ति से किया, नहीं तो वो भी कुछ नहीं अकेले कर पाते। बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वो राम जी वाली कथा पूरी। तो कमिंग बैक टू दी रास लीला, तो वहां पर क्या होता है कि कृष्णा जी जो है वो अपने आप को एक्सपेंड कर देते हैं। जब वो अपनी मुरली बजा के सारी गोपियों को बुलाते हैं वहां पे पूर्णिमा की रात में, तो सारी गोपियां वहां पे आ जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने आप को
इक्वली इक्वल टू द ईच गोपी, लाइक इक्वल टू द नंबर ऑफ गोपीज, जितनी गोपियां वहां पे होती हैं उतने ही कृष्ण जी अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं, विस्तारित कर लेते हैं। तो हर गोपी के पास उनके पर्सनल कृष्णा जी आ गए, तो हर गोपी जो है कृष्णा जी के साथ डांस कर रहे हैं, वो अपना सब डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेजर्स उनको दे रहे हैं। बट क्या होता है कि कृष्णा जी वहां से चले जाते हैं, एकदम से डिसअपियर हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। क्यों? ये उससे हमें क्यों होते हैं और हमारी लर्निंग क्या है? वो इसलिए होते हैं कि गोपियों को वहां पर घमंड आ गया थोड़ा सा, क्या कि कृष्ण सिर्फ मेरे पास है, कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है, देखो मैं सबसे बड़ी सौभाग्यवती हूँ। क्योंकि उनको दूसरे गोपी और दूसरे कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, उनको वहां पे सिर्फ और सिर्फ खुद का और मेरे साथ वाले कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तो उनको क्या लगता है कि मैं सिर्फ मेरे पास है कृष्ण और किसी के पास नहीं, तो कृष्ण मेरे हैं। तो जैसे ही आपके अंदर ये अहंकार आया कि कृष्ण मेरे हैं, या मैं सौभाग्यवती हूँ, या मैं सौभाग्यवान हूँ, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो ये है कि आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो चीजें धीरे धीरे रिवील होती जाएंगी, भगवान का जन्म कर्म और ये सारी चीजें रिवील होती जाएंगी। बट हमको अहंकार नहीं लाना है, हमको सेवा भाव से दासानुदास बन के रहना है। तो बट ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये बहुत बार ऐसा होता है कि आ जाता है, और उसके लिए हमें चाहना है कि ज्यादा से ज्यादा प्योरिफाइड हो पाए। बट द पॉइंट इज कि जो गोपी, जो भगवान की उच्चतम भक्त हैं, उनके अंदर अगर अहंकार आ सकता है तो हम क्या चीज है, हम किस खेत की मूली है, ये आप सोचिए। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने आप को कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख के और सारी चीजों को देख के जितना भी, इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा जो भी कुछ करना है सीनियर से पूछे करो, क्योंकि वी डोंट हैव दैट इंटेलिजेंस कि हमें क्या करना है। हम जनरली क्या करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस से करते हैं काम, है ना, बट डोंट नो कि कहाँ पे जाके वो पहुंचता है। बट दैट्स व्हाई वी से कि हमें अपने आचार्य, अपने गुरु से लेके आगे चीजों को पढ़ना चाहिए। ओके, कमिंग बैक टू रासलीला। तो वहां से कृष्णा जी जो है अंतर्ध्यान हो गए। तो अब सारी गोपियां जो है रोने लगती हैं, तो वो गोपी गीत गाती हैं कि भाई हम कृष्ण, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हमें तुम चाहिए हो। तो गोपियां जो है उस कृष्णा जी को सब जगह ढूंढने जाती हैं, और वो ढूंढते ढूंढते आगे जाती हैं। तो उनको 2 तरीके के पद चिन्ह मिलते हैं वहां पे। अब भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों में 19 प्रकार के चिन्ह होते हैं, ऐसे ही राधा रानी में भी होते हैं, बट दे आर डिफरेंट। तो अगर आप उसका फुटप्रिंट लोगे तो दे कैन डिफरेंशिएट कि ये कृष्ण जी के पद चिन्ह है और ये राधा रानी के पद चिन्ह है। तो वो गोपियां जो है वो देखती हैं और वो समझ जाती हैं कि 2 लोग हैं यहाँ पे। अब वो वहां पे तो वहां पर आता है भागवतम के 10वें स्कंद में ये वर्णन कि एक विशिष्ट गोपी है जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण चले गए। तो ये जो विशिष्ट गोपी है, दैट इज नन अदर देन राधा रानी, क्योंकि वो वहां पे ये बोलती है कि विशिष्ट गोपी ने जब अवश्य ही हम सबसे बहुत ज्यादा भगवान कृष्ण की सेवा की होगी, और ये विशिष्ट गोपी हमसे बहुत ज्यादा प्रिय होगी भगवान को, तभी भगवान उसके साथ गए। तो वो इनडायरेक्टली वहां पे मेंशन है कि वो राधा रानी है। तो फिर जब आगे जाती हैं वो और वो ढूंढती हैं, तो अब बेसिकली वो बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है। वैसे तो कृष्णा जी कुछ भी कर सकते हैं, वो पूरी एरिया को बदल सकते हैं, बट वो वहां पे लीला कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो नारायण रूप ले लेते हैं। तो अब वो अपने पूरे नारायण रूप में जो उनका ऑफिशियल रूप होता है, मल्टी हैंड्स एंड ऑल दोस शस्त्र एंड अस्त्र, तो वहां पे लेके वो खड़े जाते हैं। तो गोपियां आती हैं उनके सामने, उनको चकमा देने के लिए। तो मतलब वो रूप लेते हैं गोपियों को चकमा देने के लिए। तो गोपियां आती हैं, उनको नमस्कार करती हैं और चली जाती हैं। उनको कृष्ण चाहिए, उनको नारायण नहीं चाहिए। इट डजंट मीन कि वो जानती नहीं है नारायण भी भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, बट नहीं, उनको चाहिए कृष्ण, जो कि उनको माधुर्य रस में उनकी सेवा कर सके। तो वो वहां से सब चले जाती है। फिर वो राधा रानी के पास ही होते हैं। यदि राधा रानी को देखते हैं तो वो फिर से नॉर्मल अपने कृष्ण रूप में जाते हैं, क्योंकि राधा रानी से वो नहीं छुप सकते, राधा रानी के को वो चकमा नहीं दे सकते। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन राधा रानी एंड अदर गोपीज। तो गोपी जो रासलीला होती है उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं पार्वती माता के साथ कि मैं भी जाऊंगा भगवान श्री कृष्ण की। उनके लिए सबसे प्रिय, जो भगवान शिव के लिए जो सबसे प्रिय है उनको, वो है रासलीला। तो वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपेश्वर बन के आते हैं, और गोपेश्वर एज अ गोपेश्वर उनका एक मंदिर भी है वहां पर। तो ये थोड़ा सा रासलीला का वर्णन था, जिसमें इनडायरेक्टली बताया गया है कि राधा रानी है भागवतम में। तो कोई प्रश्न उस पर? हरि बोल प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, उनकी जो डियरेस्ट गोपी थी राधा रानी के अलावा, वो चंद्रा पल्लवी थी या ललिता विशाखा सखी को बताया जाता है?
वो एक्चुअली माता जी मैंने बताया कि उनकी टीम थी 2 की, तो चंद्रावली की अलग वो 7 की गोपियां थी, और जो राधा रानी थी उनकी टीम में ललिता विशाखा वो सब थी। तो व्हेन इट कम्स टू राधा रानी, जब वो राधा रानी के पास होते थे तो वो ललिता विशाखा वो सब उनकी टीम में रहते थे, और चंद्रावली वाली टीम अलग थी। तो उनकी गोपियों का नाम नहीं मुझे पता, बट दैट्स व्हाट मैंने जो सुना है लाल गोविंद प्रभु से कि उनकी 2 टीम रहती थी। तो राधा रानी एज अ कलेक्टिव जाते थे, जैसे, और ये मान लो कि राधा रानी उनकी कैप्टन है, और ललिता जी है उनकी कोच हैं। तो ललिता जी सबसे बड़ी थी राधा रानी की गोपियों की टीम में, तो वो जनरली राधा रानी को बताती थी, जैसे राधा रानी कभी रूठ जाती थी, वो थोड़ी हम लीला सुनेंगे आगे। तो ललिता उनको आके स्पेसिफाई करती थी कि भाई राधा छोड़ो, क्या तुम इतना वो कर रही हो, वो सब चीजें। क्योंकि प्रभु जी कहीं पे अगर हम सखियों को देखें तो हम ललिता और विशाखा सखी को ही देखते हैं राधा रानी के साथ, तो इसलिए मुझे टीम ही है ना। राइट थैंक यू थैंक यू माता जी। प्रभु मेरा को भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी प्रभु जी, एक्चुअली 2 पार्ट हैं उसके। एक तो मैं शेयर दोबारा कर रहा था। हाँ ओके, तो बेसिकली जैसे ना अपना राधा रानी की जो 8 प्रिंसिपल गोपीज हैं, हाँ जी, तो उनमें हमें जैसे चैतन्य लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये कुछ गोपी हमें पता है कि कौन सी गोपी, डिफरेंट गोपीज आई थी, डिफरेंट डिवोटीज, और उनका वो रूप लेके। तो आपको मालूम है कि कौन सी गोपी किस उसमें आई थी? किस गोपी किस उसमें, सॉरी मिस कर दिया प्रभु मैंने। जैसे अद्वैताचार्य हैं, या फिर ठाकुर हैं, और ये सब राधा रानी की गोपियां ही थी प्रभु। हाँ जी, हरिदास ठाकुर तो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, जो ब्रह्म विलोमान लिहाला जो उन्होंने की थी, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक तरीके से वो कर दिया था, दुखी कर दिया था, कि उन्होंने सारे उनके लोगों को, उनके पार मतलब उनके फ्रेंड्स को, गोप और उनकी जो गायें थी उनको ले गए थे वो, तो उन्होंने उनको भक्ति से अलग कर दिया था, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मा जी से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे, तो ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की, बट कृष्ण जी ने कोई जवाब नहीं दिया उसका, एज अपोज टू जब इंद्रदेव ने वो किया गोवर्धन लीला, तब उन्होंने इंद्रदेव को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे ब्रज को उनके पास ले आए थे, वो तो भक्तों को उनका संग कराया था, तो उन्होंने जब वो माफ नहीं किया था, तो वो हरिदास ठाकुर बन के आए थे, और उन्होंने जो है नामाचार्य बने, वो जब 3 लाख नाम लेते थे रोज, 22 घंटा वो सिर्फ भगवान की जप करते थे, तो दैट इज हरिदास ठाकुर, वो ब्रह्मा जी का रूप थे। और जो मैंने ये सुना है कि जो राधा रानी की जो ये थी संगीनी, उनको मंजरी बोलते थे, जो उनको हेल्प करती थी, जैसे आप कहते हैं ना कि जब पहले के टाइम में क्षत्रिय स्त्री का विवाह होता था, उसके साथ थोड़ी दासियां जाती थी और उनकी हेल्प करती थी, तो उस टाइप के राधा रानी की जो मंजरी थी, वो सारे हमारे षड गोस्वामी हैं, रूप सनातन जो गोस्वामी जो है, रूप मंजरी, सनातन मंजरी, ये ऐसा सुना है मैंने। अच्छा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि ललिता कि कौन सी गोपी जी किस रूप में आई और विशाखा जी किस रूप में आई, वो इतना नहीं मुझे पता। ओके, और हमारे को ये भी नहीं पता ना कि जैसे रामायण में, रामायण लीला में ये गोपियां आई थी, जैसे हनुमान जी कौन है, या फिर ऐसे विभीषण कौन है, या फिर ऐसे हाँ प्रभु, इतना तो नहीं डिटेल में पता। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। मैं आपको एक बार दोबारा शेयर करता हूँ, कुछ शेयरिंग में प्रॉब्लम, एक्चुअली वो वीडियो ये व्यू चला जाता है उसमें ना देखने वाला, आई डोंट नो व्हाई। प्रभु एक ही हो सकता है, या तो आप शेयर कर सकते हो या फिर वीडियो का वो नहीं, वो साइड में थोड़ा पैनल सा बन जाता था ना, वो अच्छा, मेरे में तो आ रहा है वैसे ही प्रभु। ओके, मेरा वो पता नहीं क्यों चला गया। तो आप एक काम करो, जो ऊपर गैलरी व्यू है ना आपके स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड पे है क्या? अच्छा, नहीं दिख रहा होगा अभी। या पार्टिसिपेंट पे क्लिक करोगे ना आप, ऊपर राइट साइड पे एक गैलरी व्यू है ना ऊपर, आइकॉन जो फॉर ग्रिड दिखा रहा है एक, वो पता नहीं प्रभु, मैंने शायद कुछ तो मूव कर दिया, उसको नीचे कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। चलो ठीक है, कोई नहीं प्रभु, ओके। तो हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो रासलीला और यहाँ तक के लिए? ओके, तो हाँ प्रभु एक क्वेश्चन है। जी माता जी। मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने बताया कि जब कृष्ण गए तो वो एक विशिष्ट गोपी के साथ गए, इसका मतलब वो राधा रानी के साथ गए। हाँ जी, हाँ जी। जब गोपियां उनको ढूंढने के लिए आई तो इसका मतलब वो राधा रानी के साथ थे,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस समय वो नारायण रूप में थे, लेकिन जब उन्होंने राधा रानी सामने आई तो वो वापस कृष्ण रूप में आ गए? वो एक्चुअली वो उनको, मैंने को शायद इतना ध्यान है कि वो जब आए थे वहां पे तो वो बोलते हैं कि राधा तुम यहाँ रुको, मैं जरा उनको सेटल करके आता हूँ, गोपीज को वापस करके आता हूँ। तो वो साइड में जाके जो है नारायण रूप लेते हैं और उनको वापस वहां से भेज देते हैं ताकि वो राधा रानी के साथ वो अपना रसास्वादन कर सके, वो लीला कर सके। तो लेकिन जैसे ही राधा रानी सामने आती है तो वो फिर वो नहीं रह पाते, वो सोचते हैं कि मैं उनको भी चकमा दे दूंगा, कि मैं उनको विष्णु बन के दिखा दूंगा, बट वो नहीं कर पाते। राधा रानी के सामने वो नॉर्मल अपने कृष्ण रूप में आ जाते हैं। तो वो उनकी लीला थी वहां की। इज दैट ओके माता जी? या चलो। तो भागवतम में हमने डिस्कस किया कि अप्रत्यक्ष रूप से राधा रानी का नाम आता है। तो अब भागवतम के बाद जो आप आता है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई परीक्षित महाराज को और सूद गोस्वामी को, सूद गोस्वामी ने सुनाई 88,000 ऋषि मुनियों को, और उनसे उसके बाद जो चेन चली हमारी, जो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में चली है, तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि राधा रानी की ग्लोरिफिकेशन, उनकी महिमा किसने गाई है, कौन गाता है उनकी महिमा को। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जो है वो टॉप मोस्ट डिवोटी है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि वो वैष्णवों के टॉप मोस्ट है। टॉप मोस्ट वैष्णव जो है वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव जो है वो एक बहुत अच्छी स्तुति लिखते हैं, कृपा कटाक्ष। कृपा कटाक्ष नाम की बहुत अच्छी स्तुति है जिसमें वो कृष्ण जी और राधा जी का वर्णन करते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बताते हैं कि वो उनसे, मतलब मैं उनकी उस लीला में ही इतना मोहित हो जाता हूँ कि मैं और सब चीज भूल जाता हूँ। उसके बाद जी भी अपने ब्रह्म संहिता में प्रेयर करते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमम अहम भजामि, उसमें वो राधा जी का वर्णन भी करते हैं उसी अपनी स्तुति में। उसके बाद हम, वो तो चलो बहुत ऊपर की बात हो गई, वो तो मतलब शिव जी और ब्रह्मा जी, वो मतलब हमारी जो परंपरा है उसके टॉप मोस्ट हैं। उसके बाद तो कितनी सारी जनरेशन आ गई। तो हम अपने नियरेस्ट में देखते हैं ताकि हम थोड़ा उसको रियलाइज कर पाए, उसको हम उसको रिलेट कर पाए अपने आप से। तो शुरू करते हैं कहाँ से? चैतन्य महाप्रभु से, जहाँ से वो जो खुद वो राधा जी और कृष्ण जी का मिलित स्वरूप है, तो उस भाव में वो आए। कृष्ण वो खुद हैं, बट उनको जब कृष्ण जी जाते हैं तो वो 3 डिजायर लेके जाते हैं। तो एक डिजायर तो ये होती है कि राधा रानी को मेरे में क्या दिखता है जिससे वो मेरी इतनी सेवा करती है, और राधा रानी किस भाव से मेरी सेवा करती हैं, क्या उनमें ऐसा है कि वो हमेशा मेरे सेवा के लिए लगी रहती हैं। और तीसरा मैं भूल गया, तीसरा मुझे याद नहीं, बट दैट इज व्हाट वो चैतन्य महाप्रभु लेके आते हैं अपनी भाव को। तो कृष्ण रूप और राधा भाव, तो वो गौरांग बन जाते हैं। तो उन्होंने जो प्रेम भक्ति और ये महामंत्र का जो संकीर्तन जो उन्होंने पूरा फैलाया, उसके बाद जो उनके डायरेक्ट डिसाइपल थे वो हमारे षड गोस्वामी थे। तो रूप गोस्वामी लिखते हैं, राधे जय जय माधव दैते, पूरा अपना एकदम बताते हैं कि राधे और माधव, राधा, आप जय राधा माधव ले लीजिए, कोई भी भजन ले लीजिए, राधा और कृष्ण को साथ में ही है। कृष्ण के नाम चेंज हो जाते हैं, राधा जी का नाम वही रहता है, क्योंकि वो राधा ही है, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उनका इवन नाम में भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके बाद जीव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रेममयी राधा, ये मेरे को बहुत अच्छा भजन लगता है, मैंने कई बार आई थिंक कभी गाया है कीर्तन में कि कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। वो उनकी जान है, वो उनके जान है, वो उनके प्रेम में है, वो उनके प्रेम में है। तो दे आर नन अदर देन सेम है, वो इतने प्रेम भाव में रहते हैं कि वो सेम ही है। नरोत्तम दास ठाकुर का है जो कृष्ण प्रभु ने एक बार किया था क्लास में, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा। इनका जो जुगल है, जो इनका जो क्या बोलते हैं, जो कपल है, वो मेरा प्राण है, वो मेरे प्राण है। तो हमारे जो गोस्वामी हैं, हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने अपना हृदय ही निकाल के रख दिया है अपने गीत में। इतने प्रेममय और इतने भाव के उन्होंने जो गीत लिखे हैं, बहुत अद्भुत है वो। ऐसे ही अभी उसमें और नीचे आएंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि भागवतम तो है ही राधा रानी की महिमा, वो राधा रानी की महिमा गा रही है। क्यों? क्योंकि जहाँ कृष्ण की महिमा हो रही है वहां तो राधा रानी की महिमा हो ही रही है, क्योंकि राधा रानी छुपी हुई है कृष्ण जी के पीछे। तो राधा जी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो शक्ति उनको राधा रानी दे रही है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जो हम इस्कॉन में कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, उसका भाव ये है कि उस भक्ति से शायद राधा रानी प्रसन्न हो जाए और हम पे अपनी कृपा बरसा दें। भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं,
और राधा रानी कृपा बरसाती हैं, इसलिए उनको बरसाने वाली बोला जाता है, यू नो। तो दैट इज द डिफरेंस। जो करुणा, अगर करुणा निधि है भगवान श्री कृष्ण, तो वो करुणा आ कहाँ से रही है, उसका सोर्स क्या है, तो वो राधा रानी है। अब तत्व की दृष्टि से आप देखेंगे तो कृष्ण ने ही एक्सपेंड किया है राधा रानी को, पर राधा रानी उनको पूर्ण करती है। तो इसलिए राधा रानी की जो महिमा है अनेक वैष्णवों ने, हमारे गुरुओं ने, सबने गाई है अच्छे से। अब जो राधा रानी का जो वृंदावन में अगर हम चलें ब्रजमंडल में, तो वहां पे उनको वृंदावनेश्वरी कहा जाता है। जो पिछला गीत था जीव गोस्वामी का, उसमें वो बोलते हैं कि वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा। तो वृंदावन की ईश्वरी है वो, ईश्वर राधा जी जो है कृष्ण से ऊपर है वृंदावन में, ब्रजमंडल में। ब्रजवासी जो हैं, जो वहां रहते हैं, वो राधा रानी को ज्यादा प्रेम करते हैं कृष्ण से। कृष्ण जन्माष्टमी से ज्यादा वहां पे राधाष्टमी बनाई जाती है, जन्माष्टमी से ज्यादा बेटर बनती है राधाष्टमी वहां पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा का नाम लोगे तो बिहारी अपने आप चले आएंगे। मैंने जो राधा जी, जो कृष्ण जी खुद बोलते हैं कि रा का नाम जहां मैं लिखता हूँ मैं भक्ति दे देता हूँ, और धा जहां उसने जोड़ दिया तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि उसने मेरी प्राण प्रिय राधा का नाम ले लिया। तो वहां पे आप देखेंगे वृंदावन, जो भी आप सब लोग गए होंगे, तो वहां पे स्पेशली वहां राधे राधे, वहां अगर आप कलेक्टिवली वहां की अगर सबकी वॉइस जोड़ दो तो राधे राधे का वहां पे गूंज होने लगे, इतने वहां सिर्फ राधे राधे होता है। वहां कृष्ण तो बहुत कम नाम बोलते हैं, राधे 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 राधे, हर कोई आते जाते राधे राधे। ये तो है, हम बोलते हैं ना हरि बोल हरि बोल, हरि बोल प्रभु सुनो, हरि बोल प्रभु सुनो, राधे राधे चलता है। तो वो है ब्रिजवासियों का भाव। ब्रिजवासियों का जो गोपियां हैं उनसे जस्ट नीचे ब्रिजवासी आते हैं, जो गोपी नहीं है वहां पे, वो बाकी सारे लोग ब्रिजवासी हैं। अब अमरेंद्र प्रभु बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हम एक ब्रजवासी हैं जो ब्रज में रहते हैं, एक ब्रिजवासी हैं। सोन कृष्णा प्रभु, आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा, जैसे राधानाथ महाराज जी ने एक बार बोला था ना कि ये जो हमारा जीवन है वो एक ब्रिज के समान है, यू नो। हम जब हमें टेम्पल जाना होता है तो हम वेस्ट गेट ब्रिज पे चढ़ते हैं, जब वापस आना होता है तो उतर उस पे ही चढ़ के वापस आ जाते हैं, वहां रुक तो नहीं जाते ना, वहां लिखा है नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग। ऐसा ही जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमें अपने शरीर को, अपने इस भौतिक जीवन को एक ब्रिज की तरह समझना चाहिए। क्या कि हम जहाँ पे गिरे हुए थे वहां से हम यहाँ पे आए, अब हमें इसी जन्म में आगे जाके इस ब्रिज से वहां चले जाना है, कहाँ पे, आध्यात्मिक जगत में। तो लेकिन हम अटक गए हैं यहाँ पे अभी, यू नो। हम नो स्टैंडिंग नो स्टॉपिंग हम रूल समझ के तो आए हैं, बट यहाँ पे आगे वो सब गोल गबल हो गया, तो हम ब्रिजवासी बन गए, नॉट ब्रजवासी। तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट था कि हमको जितना हो सके उतना भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम ब्रिजवासी से ब्रजवासी बनने की तरफ बढ़े। तो इसके बाद मैंने मेन थोड़ा सा तत्व की दृष्टि और उनका जो थोड़ा सा एक तरीके से आपको थ्योरेटिकल, और जिसे आप बोलें कि थ्योरेटिकल नॉलेज टाइप अगर बोल सकते हैं, तो उसको मैंने ये सब कवर किया है। तो अभी तक का कोई प्रश्न? उसके बाद हम लीला थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की थोड़ी सी लीलाएं लेंगे, ताकि थोड़ा सा यू नो प्रेम भाव बढ़े हमारा, और हमें अच्छा लगे सबको, एटलीस्ट मुझे अच्छा लगे बोलने में और खुद को सुनने में, ताकि क्योंकि उनकी बहुत मधुर लीलाएं हैं। तो अभी तक कोई और प्रश्न हो किसी का? ठीक है। तो भगवान जो बेसिकली मधुर, उनकी लीला तो सारी ही मधुर है, क्योंकि वो जो कर्म करते हैं राधा रानी और जो श्री कृष्ण कर्म करते हैं, वो कर्म प्रेम, उसका बेस होता है प्रेम। तो वो उनका जो भी उनकी एक्टिविटीज जो है, दैट इज कॉल्ड लीला, पास टाइम्स। हमारी एक्टिविटी जो होती है वो एक्टिविटी होती है, वो कार्य होता है, क्रिया होती है, कर्म होता है, और हम कर्म बंधन में जुड़ते हैं अनलेस एंड अनटिल वो भगवान की सेवा हो। और राधा रानी तो करती ही सिर्फ सेवाएं। हेलो प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ सौरभ बोल रहा हूँ प्रभु जी। एक क्वेश्चन है। हाँ जी प्रभु। क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ जी हाँ जी। एक तरफ तो हम ये समझ रहे हैं कि राधा रानी जो है वो कृष्ण भगवान की ही एक क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन है। यस, एक्सटेंशन है। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि राधा रानी इज जो करुणा बरसाती हैं, और वो कृष्ण भगवान करुणा निधि है, करुणा लेते हैं राधा रानी के पास से। तो पर राधा रानी तो इनका ही एक्सटेंशन है, तो कृष्ण भगवान खुद से ही करुणा लेते हैं। हाँ प्रभु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत
मतलब वैलिड पॉइंट है, बट मेरे को जो समझ में आया वो ये है कि जैसे अब आप ये सोचो कि आपको एंजॉय करना है ना, आपको पार्टी करनी है या कुछ भी करना है, किसी भी तरीके का आप एंजॉय सोचो, तो आप अकेले कर सकते हो क्या? आपके पास पूरी कंपनी के आप मालिक हो जाओ, सीईओ बन जाओ, है ना, अगर आपको कुछ करना है, कुछ एंजॉय करना है, तो अकेले तो नहीं कर सकते ना, आपको कोई ना कोई चाहिए साथ में। और जब उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड कर दिया एज अ बलराम और एज अ चतुर्विष्णु और महाविष्णु, तो उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई वहां पे कि मुझे मतलब मैं अगर गर्भोदक्षाई विष्णु हूँ तो मुझे इस ब्रह्मांड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, महाविष्णु हूँ तो मुझे डिफरेंट लीलाएं, हमें डिफरेंट अवतार लेने हैं, बट जो हॉलीडे मोड है, जो रिलैक्सिंग मोड है कि मुझे सिर्फ एंजॉय करना है, कुछ काम नहीं करना, तो वो करने के लिए उनको कुछ साथी चाहिए ना, तो इसीलिए वो एक्सपेंड करते हैं राधा रानी को, राधा रानी के रूप में, और उसी को ही वो फिर उस माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। तो इट्स लाइक कि वो उन्हीं का ही पार्ट है, बट दैट्स हाउ दे एंजॉय। अब आप पति पत्नी हैं, जैसे आप मान लीजिए, बहुत मतलब ऑब्वियसली उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, बट आई एम जस्ट गिविंग अ बहुत छोटा एग्जांपल कि आप वो आपका एक्सपेंशन नहीं है, वो तो नहीं है, बट लेकिन यू नीड समवन टू एक्सचेंज लव, you can't just keep loving to yourself that just because you are supreme personality, you are absolute truth। तो ठीक है मैं उनको कुछ ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ भगवान को ऑब्वियसली, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको कुछ अगर एंजॉय करना है तो आपको कुछ चाहिए साथ में, कोई जीता जागता व्यक्ति चाहिए जिसके साथ आप एंजॉय कर सकें। मटेरियल चीजों से या निर्जीव चीजों से कितना आप एंजॉय करोगे, है ना प्रभु? राइट। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी आप कह सकते हैं या ना समझ में आने वाला है। तो मेरे को ये लगता है कि वो जो फिल्म का डायलॉग है ना कि मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का वो है किस्सा कि वो जब आप प्रेम भाव पे पहुंच जाएंगे तो आपके दिल में आएंगे, समझ में नहीं आएंगे आपके। राइट। So that is my understanding, bro. Okay, bro. Thank you. तो हम लीलाओं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राधा रानी के जन्म से शुरू करते हैं। तो श्रावण के कृष्ण पक्ष में की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसके सही 2 हफ्ते बाद राधा रानी का जन्म होता है अष्टमी पे, वो भी अष्टमी है। तो क्योंकि अब टेढ़े को संभालना है तो उसके लिए भी एक टेढ़ा ही जाना चाहिए ना। अगर वो अष्टमी में पैदा हुए हैं, वो कभी नीचे जाते हैं कभी ऊपर जाते हैं, अगर उनका टेबल या उनका पहाड़ा आप बोले तो वो ऊपर नीचे जाने वाले, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी सीधा नहीं बंदा चलेगा, उसके लिए भी अष्टमी पे पैदा होने वाली राधा रानी आएंगी काम करने। तो अब आप ये एक बहुत बड़ा चीज है हमारे समझने के लिए कि कृष्ण जी को गर्भ मिल गया माता देवकी का, राम जी को गर्भ मिल गया माता कौशल्या का, लेकिन राधा रानी को और सीता रानी को कोई गर्भ नहीं मिला। भगवान को कोई गर्भ नहीं मिला जिसके थ्रू वो राधा रानी को और माता सीता को पैदा कर सकें। तो सीता माता जो है वो भूमि से निकल के आती हैं, और राधा रानी कहाँ से आती है किसी को पता नहीं। वो सीधा उनको मिलती है वृषभानु को, वो अपनी पत्नी कीर्तिदा के पास लेके जाते हैं, देखो कितनी सुंदर लड़की हमको मिली है। वो कमल के फूल पे वो पाई जाती है राधा रानी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आई। क्यों? क्योंकि भगवान को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे वो इतने बड़े डिवोटी को, इतने बड़े उनकी शक्ति को पैदा करा सके। सोचिए आप, तो वो उनकी पहली लीला है, उनकी जन्म की लीला। तो उसके बाद दूसरी लीला आती है, कृष्ण जब राधा रानी को पहली बार देखते हैं। उस राधा रानी के जन्म की एक चीज मैंने मिस कर दी कि जो राधा रानी का जो जन्म होता है तो वो अपनी आंखें नहीं खोलती हैं। तो उनका जो जन्म होता है वो बरसाने में रावल एक जगह है, वहां पर होता है, नंदगांव से थोड़ा सा दूर है वो। तो अब वो सोचते हैं कि भाई ये आंख नहीं खोल रही है लेकिन सांस ले रही है, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या है। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आते हैं तब वो पहली बार अपनी आंखें खोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस जगत में भगवान कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी आंख पहली बार खोलेंगी तो कृष्ण को देख के ही खोलेंगी, तो जो भी कर्म करेंगी वो कृष्ण को देख के करेंगी। एक चीज में पता नहीं शायद स्लाइड में मिस हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण जब ये बोलते हैं कि मैं रा और धा का, तो वो एक दूसरा उनका जो रिलेशन है वो ये भी है कि जो नित्य निष्काम निष्भाव निस्वार्थ होके हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती है, वो है राधा रानी, कृष्ण कहते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं जिसकी सेवा में निष्काम निष्पाप निस्वार्थ और हमेशा सेवा में लगाते रहता हूँ, वो है राधा रानी।
जो मेरी में सेवा में और मुझे आनंद देने में लगी रहती है वो राधा रानी है, और जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसकी मैं सेवा में लगा रहता हूँ, वो भी राधा रानी ही है। तो वो दे आर लाइक दे कांट लिव विदाउट ईच अदर, जो होता है ना, वो है राधा रानी और कृष्ण के बीच का संबंध। तो जब कृष्ण थोड़े बड़े होते हैं, आई थिंक शायद 5 या 6 वर्ष की उनकी आयु होती है, तो उस समय वो बरसाने में रहती हैं और ये नंदगांव में रहती है, तो उस टाइम तक वो मिले नहीं है शुरू के वर्षों तक। उसके बाद क्या होता है कि गोप ग्वाला बोलते हैं कि नंदगांव में एक हमने सुना है कि कोई गोपी है, बच्चों को भी वहां सबको गोपी ही बुलाते हैं, तो वो बोलते हैं कि एक गोपी है जो बहुत ही सुंदर है, कि उसको देख के लोग सब मतलब आश्चर्यचकित रह जाते हैं, तो चलो देखने चलते हैं। तो कहते हैं चलो आज की गैया बरसाने की घास खाएंगी हमारी, चलो जी वो चलते हैं। तो वहां पर जो राधा रानी होती हैं वो अपनी ललिता विशाखा और सारी सखियों के साथ एक छुपन छुपाई गेम खेलती हैं, हाइड एंड सीक। तो राधा रानी की एक फिक्स्ड कुंज होता है, एक जगह होता है, एक घर होता है, वो फिक्स्ड है उनकी, वो रोज वहीं छुपती हैं। चाहे कोई भी क्या बोलते थे उसको कि आज मैं डैन जा रहा हूँ, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधूंगा या मुंह पे हाथ रखूंगा और मैं सबको ढूंढूंगा, तो कोई भी जाए, राधा रानी की फिक्स जगह थी, वो अपने ही कुंज में जाके छुपती थी। तो कृष्ण जी जो है बाई चांस क्या मतलब, उनकी तो लीला है तो उन्हें पता ही होगा, तो उस कुंज में आके पहले से छुप जाते हैं। अब वो राधा जी को नहीं पता कि कृष्ण यहाँ पे है, वो एक्चुअली मेटीरियल लेवल पे वो नहीं जानती कि कृष्ण कौन है, बट स्पिरिचुअली वो जानते हैं, वो योग माया का कर्म है। योग माया उनको बताती है उनके गोप वालों को कि भाई ये भगवान, मतलब भगवान है भी और नहीं भी, उसका डिफरेंशिएशन किस हिसाब से कराना है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है योग माया की। तो राधा रानी वहां पे आती हैं और वो छुप जाती है वहां पे। तो आप ये सोचिए कि कृष्ण यहाँ छुपे हुए हैं, बीच में कोई एरिया है, राधा रानी आई, वो छुप गई। तो कृष्ण पहली बार देखते हैं राधा रानी को, वो भी साइड फेस, पूरा फ्रंट फेस टू फेस नहीं, साइड फेस देखते हैं, और वो मूर्छित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को देख के मूर्छित हो जाते हैं, वो भी साइड फेस। अब कृष्ण कौन है? कृष्ण मदन मोहन है। वो कृष्ण जिनके पास करोड़ों करोड़ों कामदेव आते हैं उनका 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 दर्शन करने के लिए। जो कामदेव, जो देवता जितने भी सुंदरता हो सकती है जगत में, वो सब उनके पास आती है सुंदरता मांगने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए। वो मदन मोहन राधा रानी से मोहित हो जाते हैं, इसलिए राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहा जाता है। तो ये उनकी लीला है, जो पहली बार देखते हैं कृष्ण राधा रानी को और मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद आती है गोवर्धन लीला। जब वो गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, तो वो आप सब जानते हैं कि जब वो इंद्र की पूजा मना करते हैं और कहते हैं कि गोवर्धन की लीला, गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि वो हमको सारा वो देते हैं, नेचुरल चीजें वो प्रदान करते हैं। इंद्र का तो कर्तव्य है, वो देवता है तो उनको बारिश करनी ही करनी है, वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तब जब सामवत मेघ से वो अपना मूसलाधार बारिश होती है, तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। अब क्या होता है कि भगवान गोवर्धन उठाते हैं 7 दिन 7 रात, जैसे परीक्षित महाराज ने भागवत सुनी, ऐसे ही कृष्ण जी जो है अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। तो 5 दिन हो गए, लगभग 5 या 6 दिन हो गए, तो यशोदा माई को बहुत वो हो जाती है, बड़ी विचलित हो जाती है कि यार मेरा लाला जो है 5 दिन से कंटिन्यू उठा रहा है पर्वत, और तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो, सब लोग खड़े हुए हो यहाँ पे आराम से मजे ले रहे हो, कुछ करो, मेरे बच्चे की हेल्प करो, उसने कुछ खाया पिया नहीं है, उसका वो दुबला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मर जाएगा वो। अब वैसे तत्व की दृष्टि से उनको पता है कि वो भगवान है, लेकिन लोक माया ने ऐसा पर्दा दे रखा है कि वो तुम्हारा बालक है, वो वात्सल्य जो रस वो वहां पे कर रहे हैं। तब जो है गोप और गोपियां गोप जो होते हैं सारे, वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम हेल्प करते हैं, वरना ब्रज में रहने नहीं देंगी यशोदा माई, हमें ताने मार मार के मार देंगे कि भैया तुमने मेरे लाला की रक्षा नहीं करी। तो जब वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम तुम्हें रेस्ट देते हैं, तुम 1-2 घंटे का रेस्ट ले लो, खा पी लो, हम अपनी सारी जो है डंडे लगाते हैं नीचे, हम सारे अपने डंडे लगाएंगे और इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो वो सारे गोपियां और गोप जो होते हैं वो सारे लोग अपने डंडे ले आते हैं। अब कहाँ उनका डंडा और कहाँ गोवर्धन पर्वत, कहाँ वो उसको रोक पाएंगे, तो सारे डंडे लगा के खड़े हो जाते हैं नीचे कि चल हाँ कृष्ण अब तू छोड़ दे, अब हम इसको संभाल लेंगे। तो कहते हैं पक्का छोड़ दूं? कहते हैं हाँ छोड़ दे, हमने सबने नीचे से लगा लिया है, दम लगा लिया है। तो कहते हैं अच्छा मैं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे करते हैं, धड़ करके सबके डंडे टूट जाते हैं, कोई नहीं संभाल पाता। कहते हैं पकड़ 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 पकड़, गिरा। तो तब वहां पे वो क्या कहते हैं, ठीक है तूने, मतलब मैं एक कोप की तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वहां पे वो तू तड़ाक चलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे ब्रज की गाली में मजा आता है वो ओम जगदीश हरे में मजा नहीं आता। मैं आता हूँ
इस भाव को लेने के लिए। तो वहां पे जो गोप बोलते हैं वो क्या कहते हैं कि तू ये मत सोच कि तूने उठाया गोवर्धन, हम बताते हैं कि कैसे उठाया। कछु माखन का बल बढ़ो, जो हम चुरा चुरा के माखन खाते हैं, जो माखन चोर तेरा नाम हो गया है, हम सब जो माखन चोरने में पकड़े जाते हैं, तो उस माखन का बल है। कछु माखन का बल बढ़ो, कछु गोपन की है सहाय, हमने जो हेल्प करी है तेरी डंडा लगाने में है ना, तभी तू कर पाया है। और ये तो चलो आधा हुआ, श्री राधा जी जू की कृपा से तो गोवर्धन गिरिवर लियो उठाए। राधा जी की जो कृपा है ना तेरे ऊपर, तभी तू उठा पाया है, वरना तू नहीं उठा पाता। जैसे हमारे दामोदर अष्टकम में भी आता है ना कि नमो राधिका है तो दिए प्रिय है। तो राधिका की अगर कृपा है, राधा रानी की कृपा है, तभी तू कर सकता है कुछ भी, वरना तू कुछ, तू क्या गोवर्धन तो क्या, तू घास का तिनका नहीं हिला सकता अगर राधा जी की कृपा ना हो। तो ये उनका भाव है। और यहाँ पे हमें ये चीज भी देखने की है कि जो गोप हैं वो राधा और कृष्ण के उनको समझते हैं। जो योग माया जो इस हिसाब से चीजों को सेटअप करती है कि वो राधा और कृष्ण का जो वो है, जो मिलन और विरह है, उसको चलता रहता है, कभी मिलन कभी विरह, कभी मिलन कभी विरह, तो वो चलता रहता है। और वो सबको अंडरस्टैंडिंग है कि राधा और कृष्ण जो है वो एक ही, मतलब वो एक ही क्या कहते हैं कि कहते हैं ना कि एक ही माला की मोती हैं, तो वो वही है। और राधा जी जो करुणामयी है, वो इतनी करुणामयी है कि वो टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, चलो वो नेक्स्ट पॉइंट में लेंगे, वो जो लर्निंग्स है वाली वो भी नहीं। तो गोवर्धन लीला का हमने यहाँ पे वर्णन किया। उसके बाद एक लेते हैं मान लीला। एनी क्वेश्चन टिल गोवर्धन लीला? चलो मान लीला लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने सुमित प्रभु जो टेढ़े कृष्णा जी की बात की थी, वो थोड़ा सा इसमें यहाँ पे कवर होगा। तो मान लीला है उनकी, मान मतलब कि रूठना, जो रूठ जाती है राधा जी। तो राधा जी तो वो ऑब्वियसली जो लाल गोविंद प्रभु बताते हैं कि जो हमारा जो गृहस्थ जीवन होता है उसके दो सुख हैं, सिर्फ दो सुख। पहला सुख है कि जो आपकी पत्नी रूठ जाती है, तो आपको जो रूठने में जो आनंद आता है, अब आई ना आई वो अलग बात है, बट कहने की बात है कि जो रूठने में जो आनंद, उसको मनाने में जो आनंद आता है, वो है एक गृहस्थ जीवन का। और दूसरा है कि जो छोटे छोटे बच्चों की तुतलाती हुई जो उनकी बोली सुनने में जो आनंद आता है, वही है बस दो गृहस्थ जीवन के आनंद। तो अब जो रूठने में मजा आता है, तो वो रूठने वाला जो जो लीला है यहाँ पे, वो भगवान श्री कृष्ण की हो रही है। तो राधा जी का तो क्या है, वो दिन में 50 बार रूठती हैं। कुछ छोटी सी बात हुई, राधा जी रूठ गई, कृष्णा जी थोड़ा सा लेट आए, रूठ गई, झोला ठीक से नहीं झुलाया, रूठ गई। तो उनका ये चलता रहता है, उनका बहुत ऊपर के लेवल पे है। तो मान लीला में क्या होता है कि राधा जी एक बार बहुत अच्छे से मेकअप वगैरह करके, एक्चुअली तो वो खुद इतना सुंदर है, उनको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक बार थोड़ा सा अच्छा बन के वो आती हैं और कृष्ण से पूछती हैं कि कृष्ण बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अब एक पति के लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड और टफ क्वेश्चन है कि बताओ कैसी लग रही हूँ। तो अब कृष्ण है टेढ़े, राधा राम जी होते तो सीधा सीधा बोल देते, सीधे बहुत प्यारी लग रही हो, तुम तो सर्व सुंदरी हो, ये है वो है। बट नहीं, कृष्ण है, ये तो सीधा जवाब दे नहीं सकते। तो वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारी जो माथे की जो बिंदी है वो चंद्रमा पूर्णिमा की तरह लग रही है, ये तुम्हारी आंखों का काजल है वो अर्ध चंद्र की तरह लग रहा है, और कुछ 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 चंद्र चंद्र बोलते रहते हैं। तो राधा जी रूठ जाती हैं, बोलती हैं तुम पक्का चंद्रावली के पास होके आए हो, तुम पक्का चंद्रावली से मिलके आए हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, रूठ जाऊंगी मैं तुमसे। तो जैसा मैं वो आप जो पूछते थे ना माता जी की चंद्रावली और ये दो टीम है उनकी, तो ये इट्स नॉट लाइक कि वो प्रेम नहीं करते हैं। राधा जी जो है वो टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, बट उनकी जो करुणा है, उनका जो भाव है, वो और डिवोटीज को हेल्प करती हैं और करुणा प्रदान करती हैं। अगर आप तो इसलिए हम जो करते हैं भक्ति, वो किस लिए करते हैं कि ताकि शायद राधा जी प्रसन्न हो जाएं और हमको रेफर कर लें कृष्ण के पास। क्योंकि होता है ना कि अगर कोई रेफरल आता है, बीवी की तरफ से कोई रेफरल आता है, तो मना नहीं कर सकते, वो काम करना पड़ेगा। तो कृष्ण जी भी बात में है कि अगर राधा जी ने रेफरल दिया है तो भाई इसको तो प्रेमा भक्ति प्रदान करनी पड़ेगी, इसको तो अकाउंट में लाना ही पड़ेगा। तो वो भाव है। और हम जो कंटेमिनेटेड, अगर मैं अपनी बात करूं, कंटेमिनेटेड जो हम भक्त हैं, हम दूसरे की भक्ति देख के कभी कभी जलने लग जाते हैं कि यार ये तो पहले अभी से आया और अभी तना काम कर लिया। यू सी द डिफरेंस कि वो भक्ति और वो भाव और हमारी भक्ति और हमारे भाव में कितना डिफरेंस है। हम तो भक्ति पर दुख वैष्णव होता है पर दुखे दुखी, और हम क्या है पर दुखे सुखी। तो वो चीज लाल गोविंद प्रभु बताते हैं कि there is a huge difference between शुद्ध भक्त and us.
यू नो। वो धीरे धीरे करके वो प्योरीफाई होने में हमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम जो अभी बताया मैंने कि जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जपते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिलन और विरह हो रहा है, मिलन और विरह हो रहा है, वहां पे तो वो मन से बोल रहे हैं हरे कृष्ण और हरे कृष्ण, और हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया, घर के कामों के वो सेकेंडरी चीज है हमारी नाम जप। हमने क्या नाम जप का नाम वो नाम के लिए करते हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि आज की 16 हमारे नाम के लिए कर रहे हैं, तो नाम जप तो है लेकिन वो नाम के लिए करा जा रहा है, तो वो अर्थी बदल दिया हमने अपने हिसाब से। That's a learning and something we should work upon। वो एक चीज है। चलो अभी मधुर लीला में आते हैं, ज्ञान की बातें छोड़ देते हैं। तो अगला बात है राधा रानी और कृष्ण को रूठने की कला सिखाती है। अब राधा रानी तो रूठने में माहिर है, एज यूजुअल और लेडीज जो होती हैं रूठने में माहिर। तो राधा रानी एक बार वो राधा जी और कृष्ण जी बैठे होते हैं, अपना उनका बातें वगैरह चल रही होती हैं। तो राधा रानी कहती है कि कृष्ण मुझे बांसुरी बजाना सिखाओ, मुझे तुम्हारी बांसुरी की धुन बहुत मधुर है, मतलब तुम जब बांसुरी बजाते हो तो सब कुछ भूल जाते हैं, सारी टेंशन सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अब जब होता है कि राधा जी कहती है कि मुझे बांसुरी बजाना सिखाओ, तो कृष्ण कहता है कि बांसुरी बजाना तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें 2 मिनट में सिखा दूंगा, उसमें क्या है, बस एक क्षेत्र है, उनको अपना वो करना है, कैलकुलेट कब कब क्या बताना है, तो मुझे रूठने की कला सिखाओ, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, रूठने की कला मुझे सिखाओ, वो मुझे नहीं आती, मैं तुमसे रूठ नहीं पाता, मुझे रूठना सिखाओ। तो कहती है चलो ठीक है रूठना सिखाते हैं। तो राधा रानी कहती है कि देखो जिससे रूठना है ना उसको बिल्कुल भाव नहीं देना, उसको बिल्कुल भाव देना बंद कर दो। एक सेकंड, सॉरी। हाँ जी, तो वो क्या बोलती है कि जिससे तुम्हें रूठना है ना उसको बिल्कुल भाव मत दो, वो कितना भी तुम्हें बुलाए तुम जवाब मत दो। तो अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल कराती हूँ, जब मैं आऊंगी, मैं पीछे जा रही हूँ, मैं जब आऊंगी तो तुम्हें देखना नहीं है, मेरी तरफ देखना नहीं है और कोई जवाब नहीं देना है। तो राधा रानी जाती है, कृष्ण ऐसे बैठे हुए हैं, राधा रानी पूजे से बुलाती है कृष्ण ओ कृष्ण। अब राधा रानी इतनी सुंदर और इतने प्रेम से बुलाती है कि कृष्ण तो पानी पानी हो जाते हैं कि भई राधा ने मेरी बुलाया, तो फटाक से देखते हैं हाँ बोलो राधे। अब आप सोचोगे जब आपकी पत्नी आपको बुलाई तो आप भी पानी पानी तो हो जाते हो, चाहे कारण कोई भी हो लेकिन पानी पानी तो हो ही जाते हैं। तो राधा कृष्ण जी जो है पानी पानी हो गए, तो राधा ये कह रहे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो, तुम्हारी बस की नहीं है। कहते नहीं राधा तुम मुझे सिखाओ, मैं सीखूंगा, पक्का सीखूंगा। तो कहती है कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ध्यान रखना, मैं कितनी बार भी बुलाऊं मत करना। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो कृष्ण जाते हैं, तो राधा रानी जाती हैं, कृष्ण जी को बोलती है कि कृष्ण ओ कृष्ण, नहीं मुड़ते। फिर दोबारा बुलाती कृष्ण ओ कृष्ण, नहीं मुड़ते। कहती है कृष्ण देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। हाँ राधे क्या लाई हो? बस कहते रहने दो, तुमसे ना हो पाई, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बस की नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते रूठने में। कहते नहीं राधे मुझे बस एक लास्ट चांस दे दो, अब मैं बिल्कुल नहीं रूठूंगा, बिल्कुल नहीं रूठूंगा। तो फिर वो लास्ट टाइम जाती है राधा जी, जो फिर से आती हैं, और कृष्ण जी एकदम दृढ़ होकर बैठे हैं कि अब बिल्कुल नहीं करना। तो वो एक कृष्ण 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 कई बार बुलाती है, नहीं वो देखते हैं। तो राधा रानी को लगता है कि इस बार कृष्ण सही में रूठ गए, और जैसे ही उनको ये प्रतीत होता है वो फटाक से एकदम से मूर्छित होकर नीचे गिर जाती हैं, धड़ाम से आवाज आती है, धड़ाम। तो कृष्ण जी पीछे मुड़ के देते हैं, कहते हैं लो वे तो गुरु जी धराशायी हो गए, अभी हमें रूठना सिखा रहे थे और खुद नीचे धराशायी हो गए। तो वो भी एक प्रसंग है कि वो अपनी बांसुरी से गड्ढा करके जल लाते हैं और राधा रानी पे छिड़कते हैं। वो कहते हैं कि देखो राधे मैं तुमसे एक बार रूठा भी नहीं था, रूठने की एक्टिंग कर रहा था, सीख रहा था, तो तुम बेहोश हो गई, और जो तुम मुझसे रोज रूठती रहती हो 50 बार दिन में, तो मेरा क्या हाल होता होगा। तो ऐसा उनका जो प्रेम भाव है, जो प्योर लव है, ऐसी लीलाएं उनकी नित्य चलती रहती हैं। अब एक और ले लेते हैं कि जो कृष्णा जी प्रॉमिस करते हैं राधा रानी को, क्या प्रॉमिस करते हैं। तो राधा रानी एक बार उनको बोलती हैं कि तुम कृष्ण बिल्कुल भी दयावान नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई दया नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा क्रूर हो, तुम चोर हो। क्यों चोर हो, क्यों क्रूर हो? कि तुम जब देखो मारते ही रहते हो, पैदा होते ही तुमने पूतना का वध कर दिया, कर्णावत पता नहीं कितने हजारों लाखों तुमने दैत्यों को मार दिया, तुम्हारे अंदर करुणा ही नहीं है, तुम किसी को सीधा ही नहीं करते, किसी के ऊपर अपनी करुणा नहीं डालते, किसी को भी वो नहीं करते, उसको सही रास्ते पर नहीं लाते। ठीक है वो दैत्य है, उसने गलत किया है, या उसका जो भी कर्म है पुराना, तो उसको एक बार सिखाओ तो सही, उसको बताओ तो सही, तुम बहुत क्रूर हो कृष्ण, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तब कृष्ण उनको प्रॉमिस करते हैं कि राधा
इस अगली लीला में जब मैं आऊंगा तो मैं सबको माफ करूंगा, किसी को नहीं मारूंगा, किसी पर कुछ नहीं, कोई अस्त्र शास्त्र नहीं चलाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ करुणा बांटूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेम भक्ति, तुम्हारा भाव है उसको बांटूंगा। तो वो जो कलयुग में गौर चैतन्य महाप्रभु जो आते हैं वो इस भाव से आते हैं और इस अपने वचन को पूरा करने के लिए आते हैं कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति, अपना प्रेम बांटूंगा सबसे। तो उन्होंने हर किसी को गले लगाया, जबकि वहां आप देखिए कृष्णों को मारा उन्होंने कृष्ण लीला में, और यहाँ पे वो कोई शूद्र हो, कोई कोई भी हो, कितना भी नीचे गिरा हुआ बंदा हो, कोई भी हो, उन्होंने सब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का अंश देखकर उसको अपना भाई मानकर सबको गले लगाया और सब में सिर्फ और सिर्फ भक्ति लता बीज जागृत किया। तो लास्ट है आई थिंक, तो लास्ट जो है जो क्विकली लेते हैं कि राधा रानी से हमें क्या सीखना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए उन राधा रानी के लिए जिनके वश में कृष्ण है। कृष्ण को हम अभी तक हम यही समझते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई कुछ नहीं है, वो सबसे ऊपर है, उनके मतलब वही सबको चलाते हैं। तो जो जिसके अधीन है वो राधा रानी के बारे में जो आज हमने थोड़ा बहुत जाना, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि राधा रानी सर्वोच्च भक्त हैं, तो इसलिए हमें कभी भी गलती से भी किसी डिवोटी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी उनका हम कभी अनजाने में कर देते हैं, किसी को हमारी कोई बात खराब लग जाती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा हुआ है तो यू डिस्कस इट एंड क्लेरिफाई इट। हम जनरली, मैंने जो बताया ना कि गोपी जो थे, गोपी के अंदर थोड़ा सा घमंड आया कि कृष्ण मेरे हैं, मेरे पास हैं, कृष्ण वहां से चले गए। हमारे साथ कई बार क्या हो जाता है कि जैसे ही हमने कुछ अच्छी सर्विस करी या जैसे ही कुछ हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, हमको ऐसा कई बार ऐसे हमें हिंट्स मिलते हैं कि यस यू आर गोइंग अप इन भक्ति, आपका इंटरेस्ट चेंज हुआ या आपका थोड़ा भगवान में मन ज्यादा लगने लगा, तो वी गेट द प्राइड एज वेल अलोंग विद इट। जैसे जगन्नाथ राम प्रभु ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर जैसे आप 16 से ज्यादा अगर माला कर रहे हो तो इट शुड नॉट इंक्रीज योर प्राइड, इट शुड इंक्रीज योर भक्ति। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए अरे मैं तो 32 करता हूँ, तुम लोग तो अभी तक 16 ही करते हो। तो दैट इज नॉट वेयर वी शुड लीड, तो डिवोटीज को कभी भी उनका अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन एक डिवोटी को, एक भक्त को अपमान सहने की शक्ति जरूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाल गोविंद प्रभु ये कई बार कहते हैं कि जो भक्त भगवान का प्रचार करता है तो उसका डिसरिस्पेक्ट ऑब्वियसली होता है, नॉन डिवोटी से तो होता ही है, डिवोटी से भी कभी कभी हो जाता है। तो आपको जो हमने शिष्टाष्टक में सुना, तिरनादपि सुनी चेना तिरोरपि सहिष्णुना, तो सुनने की बात नहीं है, उसको धीरे धीरे अपने हृदय में लाइए, अपने आप को जैसे जैसे प्योरीफाई होते जाएंगे। अपमान करो मत, लेकिन अपमान सहने के लिए रेडी रहो। वो है एक शुद्ध भक्त, सच्चा भक्त जो भगवान का है। उसके बाद अब हम कैसे लाएंगे वो, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। एक प्रभु आए थे, उन्होंने बताया था कि फिल योर कप, फिल योर ग्लास विद कृष्णा। पानी जितना रहेगा उतना खाली रहेगा एरिया, तो उसमें कुछ गलत चीज आ सकती है, लेकिन पानी से अगर पूरा गिलास भरा हुआ है तो उसमें और कुछ नहीं डाल सकते। तो try to do as much as possible based on your capacity and your commitments and all those things. That's where you need a guru and a mentor, कि आपको वो हेल्प करे कि भाई आपकी पर्सनली आपकी लाइफ को समझे कि आप किस सिचुएशन में हैं, आप क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कहाँ पे आप ऊपर जा सकते हैं, कहाँ किस चीज को आप नीचे कर सकते हैं। दैट्स वेयर द आचार्यज एंड आवर महाराज एंड गुरुज कम्स। तो वी शुड डेफिनेटली फॉलो आवर आचार्य इंस्ट्रक्शन। जो अब आचार्य की इंस्ट्रक्शन ही देखिए आप, ऊपर से आया था भगवान कृष्ण ने बोला सततो कीर्तयन्तो माम, मेरी हमेशा वो करते रहो, मेरा हमेशा जप करो। भगवान को पता है ना हो पाई तो उन्होंने कम करा उसको कि चलो भैया 64 राउंड पे आओ। आई थिंक किसी एक गोस्वामी ने किसी ने एक स्टैंडर्ड बनाया था कि 64 राउंड पे आओ। फिर उसके बाद प्रभुपाद ने देखा भैया ना हो पाई, 64 भी ना हो पाई तो चलो 16 पे आओ, बट 16 से नो लेस देन 16, 16 राउंड्स तो करने ही करने हैं, नहीं तो वो फायदा नहीं है। फायदा इन द सेंस फायदा है ऑब्वियसली, आप एक बार भी भगवान का नाम लो तो फायदा है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई है कि हमारे को कितनी भक्ति या किस तरीके से आगे जाना है, क्या हमको लाएगा सही चीजों पे, क्या हमारी जो कलमश है हमारे हृदय के वो हटाएगा, और कहाँ से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फॉर दैट वी नीड द 16 राउंड्स एंड ऑल अदर इंस्ट्रक्शंस, जो
4 हमारे प्रिंसिपल हैं, और क्या कर नियम और नियम, ये सारी चीजें जो है वो हमारे को भक्ति और प्योरिटी बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। और जो लास्ट हम बोलेंगे एक छोटा सा कि वो है फास्ट। तो जैसे जन्माष्टमी पर पूरे दिन का फास्ट था मिडनाइट तक, उतना फास्ट राधा रानी पर नहीं, क्योंकि राधा रानी तो कृष्ण भक्त के लिए बहुत ही ज्यादा करुणामयी है। उन्होंने बोला कि मेरा आधा ही दिन रखो, दिन के 12 बजे तक मेरा फास्ट रखो और मैं उसमें प्रसन्न हूँ। तो कुछ अगर आप कर पाए इतना तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप 12 बजे तक बुधवार को फास्ट रखें जरूर, और उसके बाद अपना अन्न लें। आई थिंक प्रभु उसमें भी एकादशी लेना होता है, नॉर्मल ले सकते हैं? आई डोंट नो दैट। I think एकादशी नहीं है, but I can double check. Okay, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। I'll double check. Yeah, that is what I had the learning. So Gopivrinda has confirmed it's not एकादशी. Okay, thank you माता जी। तो जी प्रभु 8:30 हो गए आज, थोड़ा फिर से टाइम खिंच गया। But that is what I learned and I got from different classes, और जितना भी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने इस तरीके से प्रेजेंट की है। आई होप कि मैंने थोड़ा जस्टिस किया हो राधा तत्व पे और कृष्ण तत्व पे, गलत ना कुछ किया हो। तो प्रभु जी आप कोई क्वेश्चन और कोई कमेंट प्लीज। प्रभु जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। आपका जो जिस मूड से आपने दिया ना प्रभु, दैट वो मूड बहुत ही कंटेजियस था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु। ऑब्वियसली राधा रानी की जो राधा रानी का जो वर्णन है वो बहुत ही इट्स नॉट समथिंग कि हम लोग कर सकें, लेकिन आपने जिस तरीके से करा है, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू प्रभु। वो डायलॉग हम ऑब्वियसली देखो कंटेम्पलेटेड है, मूवीज देखते हैं तो वो डायलॉग आ जाता है ना कि मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं। वो मुझे लगता है उनके लिए कि राधा कृष्ण का जो है वही सीन है, वो इतने आराम से नहीं आता समझ। सही बात है। तो आप लोग सब लोग भी अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग एटलीस्ट सारे डिवोटीज का एक बार हफ्ते में एक बार दर्शन कर सकें। यस प्रभु। जिसको भी जो भी कंफर्टेबल फील करता हो प्लीज ऑन करें अपना। थैंक यू प्रभु। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो प्रभु अंकल और आंटी को तो बहुत वो वृंदावन बरसाना जाते रहते हैं, उनको तो बहुत है ही सब। हरे कृष्णा। वेरी नाइस प्रभु। ओ कैसे हो सब? सब बढ़िया। आप कैसे हैं आंटी जी? बहुत बढ़िया। हाँ जी, आशीर्वाद रखें आपका हम सब पे। क्या बात, तबीयत ठीक तो है आपकी? हाँ बस ऐसी थोड़ी सी ठंड ज्यादा लग रही थी। अच्छा ठंड लग रही है या मतलब कोल्ड वोल्ड हुआ है? नहीं ठंडी है, बस ठंड लग रही है। अच्छा फिर तो ठीक है। तो हीट ऑन करो ना। अरे हीटर ऑन करने से क्या, वो दोनों सो रहे हैं ना अंदर, तो हमारे सेंट्रल वो है ना, तो सब उनकी नींद हो जाती है ज्यादा हीट। ओके। और संदीप प्रभु कैसे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा म्यूट है। हाँ जी मैं ठीक हूँ माता जी। नमस्ते, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैंने 2 बार फोन किया आपको। हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं आपको फोन करूंगा। ठीक है, कल बात करते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ मैं कहा हाल चाल पूछूं तो आपने फोन ना कल उठाया ना आज उठाया। नहीं मैं चल और सब बढ़िया? हाँ जी हाँ जी। आप लोग ठीक हो? हाँ जी। आपने खबर भी नहीं ली।